Good afternoon, students. Kindly request everyone to settle down. I hope we can start the session. Yeah. Sorry to keep you all waiting, and first and foremost, a very warm welcome to the orientation class for sociology optional. Today, we have two very important people in our midst. One is Mr. Praveen Pandey, our faculty for sociology, Drishti IAS, and otherwise, we have another very important guest, Mr. Abhinav Jain. He is All India rank 14 for the UPSC CSE 2021, and most importantly, he's been a student of Mr. Praveen Pandey, faculty for Drishti IAS, sociology optional. So we thought it'll be nothing better than to introduce our dear student and our dear faculty for this orientation session so that you can get an idea on how to be prepared for your optional subject, be it the sociology or otherwise. So feel free. Today we're going to have an orientation session where Sir will be conducting the session. Abhinav Sir will be taking questions from all of you, and we're expecting each one of you to cooperate and probably bring out the questions that you think you need to ask so that you get maximum clarification. And before I hand over the mic to Abhinav Sir, I would like, on behalf of the students, behalf of the management, and behalf of Sir, a token of our appreciation in regards to this. And I would request Mr. Praveen Pandey, our Sir, faculty for Drishti IAS, to please hand over our token of appreciation to Mr. Abhinav Jain. I wanted you to guess who is your faculty. I mean, PK Pandey and who is Abhinav Jain. I mean, like, one thing is very sure that you are going to get a very smart teacher. But can you guess? Still, can you guess? No. Acha, who is smarter? I still take fitness tip from sir. Anyway, so you know it, and it's really grand day for everyone, for all of us. Whenever any child gets success in one's life, no doubt that the most happy person would be the child's parents, but happiest one is the teacher. And that was the time when I heard from Abhinav. He called me that day, and when he told me that I got 14th rank, you know, it took me to silence for at least 1 minute. That silence was about that happiness. आवाज नहीं निकल रही थी. I was so happy. और अभिनव ने भी कहा था कि मतलब ये जो आपकी जो खुशी है ये बहुत कुछ एक लोगों में ही मतलब जो मैंने पेरेंट्स में देखी और वो आप में. So it is just a gesture to congratulate Abhinav for his grand success. Okay. And I wish this success to all of you. I present such bouquet, such gesture to all of you exactly in the same way, and we celebrate the day. Okay, so should I transfer it to Abhinav? The another smart person, and in fact he is smarter. He is very smart, and he came to me. Actually, his brother, he was already selected, younger to him. I mean, younger means just 9 minutes younger, I think. He's my twin brother. But if you get an opportunity to meet the two people, you never find out who is Abhinav, who is Abhishek. Both have equal height, same body, same face. Even they sound equally. I mean, exactly in the same way they speak. Their voice is same. So it's very difficult to find out who is really Abhinav, who is Abhishek. So I mean, in fact, he was selected, and one of my selected student, Sanjay, he told him about me, and then finally he came to me, and everything's so fine now. So I just transfer it to him to speak something about his success, about his journey. Like he waited 5 years to get this success. In fact, when I took my first class in F1 batch,
apart from my sociology, I told students that it is not only hard work that is very important. In fact, it is patience and your perseverance that is equally important. It's very, very important because this is something, civil services something, it's not like, sometimes people get selection in first attempt, but there is a possibility you deserve too much, but uh, first attempt is not sufficient. So it does not mean that you quit at that very moment. You have a lot of opportunities, you just need to improve yourself. The only thing is that आप बहुत अच्छे थे, लेकिन उस साल आपसे भी अच्छे लोग थे who got selected. Just wait for your time, keep doing hard work, and there is no doubt that one day you get that level of selection, that level of success, the one that is present before you. Okay, now. Hello everyone. First of all, how would you like me to go about it? Hindi only, English only, or mix? Bilingual. Okay, fine. Good. And just to get an idea, I mean that to like what is percentage? mix में I think it will be 50 fine for 50 everyone. or 60 40 or 80 20? 80 20. जब मैं पहली बार जब क्लास में गया, जब मैं जीएस की क्लास लेने गया, तो मुझे बताया गया 80 20. So I thought 80% English and 20% Hindi. But I was wrong. The demand was for 80% Hindi and 20% English. Yes. I cannot not guarantee कितना percent रहेगा, but I'll try to be having a fine balance of both. And another idea I would like to get, मतलब how many of you are going to appear for 23? Maximum. Most of them. Rest for 24, I believe. कोई 22 वाला भी है क्या जो अभी मेंस लिख रहा है? Anyone? नहीं. ठीक है, सही है. तो वो तो अभी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे ना, वो ऑप्शनल अब थोड़ी ना डिसाइड करेंगे, अभी करेंगे भी तो इट्स टू लेट नाउ. सो फॉर यू आई थिंक इट इज राइट टाइम. और to begin with, I'll just start with what sir started his discussion. जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था 30th मई को रिजल्ट आया था. सो आई वॉज एट माई होम ओनली इंसिडेंटली, एंड व्हेन आई सॉ माई नेम इन द लिस्ट, तो आई वॉज ऑल्सो नम लिटरली. आई कुडंट स्पीक एट दैट मोमेंट. मैंने बस सबको देखा, घर वालों को, और बोला रिजल्ट आ गया, एंड आई वॉज क्वाइट. तो घर वाले ये डर गए कि क्या हुआ है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है. तो हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था. ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एवरीथिंग हैज नाउ कल्मिनेटेड इनटू दैट वन मोमेंट. सो फिर मैंने बोला नहीं हो गया है, और फिर 14 रैंक है, तो विश्वास ही नहीं हुआ घर वालों को. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तू दोबारा देख. मैंने कहा मैंने देख लिया है. मुझे खुद भी नहीं विश्वास हुआ था. आई ऑल्सो कुडंट बिलीव. तो आई चेक डेट, नेम वाइज, रोल नंबर वाइज, सब चेक कर लिया, देख लिया डॉक्यूमेंट का ये तो नहीं है कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट घूम रहा हो अभी. तो बट एक्चुअली तो टीचर को पता होता है. एंड व्हेन ही अपीयर्ड फर्स्ट टाइम, आई वाज सर्चिंग हिज नेम इन द फाइनल लिस्ट. आई सर्च ओनली अप टू 20. आई स्टॉप्ड क्योंकि आई बिलीव्ड हिम टू बी इन टॉप 20. nothing else, nothing more than that, just top 20. मैंने छोड़ दिया था, that's the reality. मतलब फिर मैंने कहा इससे आगे हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर का कोई मतलब ही नहीं बनता है. He is bound to become IAS. IAS तो बनना ही है इसको, लेकिन top 20 is needed. अच्छा हुआ कि उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में हुआ. He is now currently he is in postal services. But जो मैंने सोचा था, जो मैं समझता था, and I in fact even before his selection I used to quote his name in the class. I used to show his answers to the students कि कैसे एक कैंडिडेट जो सेलेक्ट होने वाला है, जो डिजर्व करता है, कैसे लिखता है वो. सो दिस इज अ मॉडल आंसर फॉर ऑल ऑफ यू. ये मैं उस समय से कर रहा हूँ. तो कभी कभी होता है ना कि जब एकदम आप ठान लीजिए किसी चीज को, तो फिर क्या होता है,
सारी कायनात फिर उसको दिलाने में लग जाती है, और वही हुआ। तुमको पता है ये? नहीं। ये तो सर को तो मतलब आई वुड से मतलब फैमिली एंड सर हैड फेट इन मी, बट मुझे लगता था कि दे आर मोटिवेटिंग मी, और मतलब वो था फॉर मी। जस्ट टू गिव अ ब्रीफ अबाउट मी, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT Kharagpur, and then I worked for about 3 years in private sector, and it was then, and it was my fourth attempt this time when I got selected. And as you all will be knowing, definitely will be knowing, मेरा sociology optional था, तभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। और yeah, so this was my fourth attempt, and I gave my first attempt in 2017, and मेरा सर से तब से ही रिलेशन है, और मैं एक स्टूडेंट टीचर तो नहीं बोलूँगा, मतलब ही इज़ मोर देन अ टीचर टू मी, और एक गुरु जिसे कहते हैं, मतलब हमारे संस्कृति में गुरु एक शब्द होता है जो आपको सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि आप मतलब जैसे सर ने बोला, जब मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं भी हुआ था तो ही वॉज मोर सैड देन मी, और जब मेरा हुआ भी तो ही इज़ मोर हैप्पी देन मी. So that is what I think a guru is, who can resonate what you feel and actually guide you at every step. Not only teach you a subject, but also guide you. So मेरा सर से तब से रिलेशन है, और he has been guiding me since then. And so for me, sociology के साथ मेरा थोड़ा मिक्स रिलेशन रहा है. I'll be going to it when we going further. So this time I scored 285 in sociology, 149 in paper 1 and 136 in paper 2, which is almost highest marks in this year. So that is about कि मेरी journey कैसी थी, and just to highlight a little bit about कि how I started my preparation, and maybe all of you will be having your own motivation about it. So well, I was working with OYO rooms, and so initially with ITC and then with OYO rooms. So we were carrying a collaboration with Government of India under Skill India. सबने पढ़ा होगा Skill India करके एक प्रोग्राम होता है, I believe all of you must have read in GS. तो उसमें जो होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, रिसेप्शनिस्ट स्टाफ होता है, सो वी वर अपग्रेडिंग देम, स्किल अपग्रेडिंग, जस्ट not exactly like this, but we were having a felicitation ceremony for all those staff workers. And at that moment, one of the housekeeping staff came to me and said, "Sir, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी." So it was a very big thing for him. So that was the motivating factor for me to find out something big in my life and to find a purpose in my life, and that's where I decided to go for civil services. And while I, as a normal aspirant, मेरा first doubt यही था कि यार कौन सा optional लेना चाहिए. So there are a number of factors which you think of while selecting an optional. अच्छा, किस किस को लगता है ऐसा ऑप्शन लेना चाहिए बहुत स्कोरिंग हो, जो बहुत ज़्यादा स्कोर आता है जिसमें? किसी को नहीं लगता? लगता होगा यार सबको. अच्छा, स्कोर की जरूरत नहीं है क्या? सो मुझे भी ये लगता था स्कोरिंग वाला ऑप्शनल ले लेते हैं, तो जो जनरल नहीं, एक्चुअली दे थिंक डिफरेंटली कि हम जो ऑप्शनल लेंगे उसमें स्कोर आएगा अपने आप. you will become the scorer in that subject कि हाँ अब से ट्रेंड शुरू करते हैं. सो मतलब ऐसा भी नहीं है कि सोशियोलॉजी इज द ओनली स्कोरिंग सब्जेक्ट या सोशियोलॉजी में स्कोर नहीं आता है, बट considering it as the only factor for deciding as your optional subject, I will not suggest. Like, that should not be your sole deciding criteria for going for sociology. How I thought about is obviously, as sir mentioned, I got in touch with Sanjay Yadav, who was one of the highest marks in 2015 exam, and he was sir student also. So he guided me about how to rationally select an optional. जिसमें से few tips I will also share with you. And then I got in touch with sir since then. तो हमारा relation तब से ही चल. So for me, I feel when you choose an optional, you should, first thing you should identify is how much interest you have and how can you relate it to it. A teacher will always play a very important aspect in it because he or she will try to build your interest. As you can see, I was not from sociology background. तो आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू आर नॉट ऑल्सो. कितने लोग हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ के आए हैं अपनी ग्रेजुएशन में? हार्डली 7-8-10 लोग, मतलब लेस देन 10%. सो फॉर यू पीपल इट माइट बी ईजी टू ग्रास्प द सब्जेक्ट, बट फॉर अदर्स ऑल्सो, एज एन एग्जाम्पल ओवर हेयर, इट इज नॉट समथिंग विच इज अनडूएबल.
But the thing is, you need to find your interest and need to persistently study it. Optional in a way is a misnomer. मतलब optional is something जो आप option पे करते हो, but optional is not an option for you. You have to mandatorily study it, and in fact devote an equal amount of time as much you are putting it in all the 4 GS subject. Let me also be very blunt at this point of time कि optional में although there are 2 papers, but they cannot be neglected or given less priority. They need equal dedication, they need equal focus. So you should not consider it as optional per se. I believe it is a very much big mandatory for you, because it is the subject which helps you enhance your score, helps you enhance your rank, and also one factor which is very much relevant for sociology in particular is its linkage and relevance with other general study subject. So for GS1, for GS2, there are many topics which are almost directly linked to your sociology optional, especially in paper 2. And also for essay, I believe not a handwritten formula, but coming from a sociological background will help you develop a better insight, and at least one of the dimension in your essay can be from the sociological perspective. So that's how I think these are the more rational and more sound reasons for selecting an optional, and sociology for me stood up to all those criteria, and that's how I started reading about it. So that was largely of sociology. Maybe probably sir हमारी discussion में I'll get to more about how I did, कैसे I approached in the last couple of three or 4 years of my preparation. So that's how I'll talk about in a while. एक मैं थोड़ा इसमें एक और चीज ऐड करूंगा, स्पिरिट की जो बात करूँ ना, कि जैसे जो इंटरेस्ट की बात आती है कि व्हेन यू हैव डीप इंटरेस्ट इन एनीथिंग, हालांकि अभी आपको पता नहीं कि इंटरेस्ट कहाँ से, हम कैसे हमें पता चलेगा कि वो इंटरेस्ट कहाँ पर है. तो नो डाउट दैट बिफोर डिसाइडिंग एनी सब्जेक्ट यू शुड ट्राई टू नो while going through the syllabus, while going through some basic books, थोड़ा सा उसको पढ़ने के बाद फिर आपको वो चीज़ डिसाइड करना चाहिए. तो उससे आपको ये लगता है ना कि मतलब ये पढ़ने पे नहीं, दिस इज समथिंग, नो आई कांट क्विट, आई फील हाईली स्टिक टू दिस वन, आई फील हाईली कनेक्टेड विद दिस वन. तो जिसमें ये फीलिंग आ जाती है ना, तो वो आप कभी छोड़ोगे ही नहीं उस चीज को. यू नेवर लीव दैट सब्जेक्ट. आपको लगेगा कि हमेशा इस पे हमको मतलब कुछ मतलब पढ़ने के साथ साथ कुछ नया ढूंढना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. एंड दैट वाज समथिंग I've seen him doing, अभिनव जैन. मैं एक मुझे याद आता है, पता नहीं को याद है कि नहीं, मैं कभी क्लास में मैंने कोट किया था अबाउट माय फ्रेंड. ही वाज इन 1998. he topped UP PCS examination. I mean, he was first ranker, and same year he got 21st rank in civil services. He is IAS with Odisha cadre. Since he also had sociology as one of his option, and I think कि मतलब जो स्कोर किया था उतना आज तक तो शायद किसी ने ना किया हो. Those days it was for 600 marks and he got 410 marks in sociology. और मैं ये भी जैसे बताता हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है, not just for cracking this examination, but once you become IAS, it is going to help you a lot in identifying people and getting connected with those people. क्योंकि आपको बहुत से लोग, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे. आप गांव में जाओगे, बहुत से ऐसे होंगे जो बिल्कुल इलिटरेट होंगे. आप ट्राइबल एरिया में जाते हैं तो वहाँ तो मतलब सिविलाइजेशन ही उनका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट. बट इफ यू गॉन थ्रू दिस सब्जेक्ट, यू नो हाउ टू कनेक्ट विद दोज पीपल. और ओडिशा की बात आप समझ ही सकते हैं कि सारी चीज़ें वहाँ पर हैं. He was in those districts as district magistrate where tribal population was maximum, and he got best district magistrates award in his lifetime. तो मैंने कभी क्लास में ऐसा बताया होगा. तो जैसे ही मेंस हुआ अभिनव का, तो कहा कि मैं एक बार मिलना चाहूँगा, कि कुछ इंसाइट्स उनसे लूँ मैं इंटरव्यू के लिए. एंड आई थिंक यू मेट हिम. यस, वो डेपुटेशन पे उस समय यहीं पे था. ही वॉज इन दिल्ली एंड ही वेंट टू मीट हिम. मतलब एक एक चीज़ जैसे जो दिमाग में रहता है, वो स्पिरिट की बात कर रहा हूँ मैं,
कि व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचते हो कैसे करना है, तो वो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा और उसके बियॉन्ड भी आपको हेल्प करता रहेगा। इनफैक्ट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इट हेल्प्स यू अलॉट। तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं कि मतलब कैसे हमको करना है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मतलब यही सब्जेक्ट दिस इज द ओनली सब्जेक्ट where you feel connected and there is no other subject, other subjects are also there, जो भी आपको लगे जहाँ पे आप कनेक्टेड फील करें, क्योंकि हम तो उसी की बात करेंगे, इसको हम बेटर वे में आपको बता पाएंगे बोथ ऑफ अस। सो दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग। Just to add on to it, जैसे जो इंटरेस्ट की बात हो रही है and how much you can feel connected to the subject is, certainly there are certain subjects which are more theoretical in nature, मतलब like जैसे there is no biasness, but जैसे philosophy है या psychology है, मतलब you cannot actually feel it in practical life, मतलब there are certain theories जो थोड़ा theoretical है, obviously you can work around it, but how I got inclination towards sociology is कि if you go through the syllabus ना, या if you go through what sociology is all about, it is about your practical life, मतलब there are topics like caste, religion, politics, how social change is happening, so you feel matlab, the subject is very live and you can always, you will be having certain bit of awareness and knowledge about it. It may be right, it may be wrong, it may not be having a theoretical or scholar based substantiation to it, but एक certain bit of connection तो आपका होगा यार. Everybody is knowing क्या caste क्या होता है, everybody is knowing to a certain extent religion क्या है. So वहाँ से I got a bit of inclination towards sociology कि yes it is doable, मतलब it is something which I can feel about. And then I went through, as sir mentioned, I went through the standard books of sociology, the NCRTs, to understand what are the terms and how the books have been written around it, whether I'm able to understand them or not. So once I went through it, I found it very much relatable. So then there was no double thoughts about it. I'll just give an example over here. I'll just give you my marks print. So out of my 4 attempts, I've written 3 mains, starting with 2017 only, which was my first attempt. AP में alternate year मेरा mains था. हाँ 268 आपको याद है, मुझे भी नहीं याद. इस बार तो 285 है इसमें 36. ठीक है ना. So why I wrote this is for two reasons. First is जब मार्क्स कम हुए थे तो जनरली ऐसा माइंड में आता है कि यार मतलब मुझ में तो कोई खराबी नहीं है, ऑप्शनल में ही कुछ खराबी होगी तो ऑप्शनल ही चेंज कर लेते हैं, है ना. तो और सिंस क्योंकि हम तो एज अ फ्रेशर हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, पढ़ लेंगे. तो एक तो इस पॉइंट पे टू स्टिक विद सोशियोलॉजी was the factor which I just mentioned. ठीक है ना. It was easy for me to quit with sociology and move on to any other subject and then take it as my optional. That is point number one. Point number two is usually you will find out, and sir will obviously resonate the same feeling, कि generally ये होता है कि when you give further attempts, so students के ना marks कम हो जाते हैं in optional subject. You might have heard from someone कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की नेक्स्ट अटेम्प्ट में बट फिर भी मेरे मार्क्स कम हो गए. सो थोड़ा बहुत मेरे साथ भी वही था एंड जनरली काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ वैसा होता भी है. सो व्हाई आई एम सेइंग इट कि इवन दो सर्टन थिंग्स आर हैपनिंग विद यू, यू स्टिल हैव टू मूव ऑन एंड डू योर बिट ऑफ हार्ड वर्क so as to achieve better marks next time. So that's the reason I just showed my marks trend, and I hope matlab all of you do get this marks in your very first attempt only. And as it is visible, I was able to get it in my first attempts also. So there has been slightly tweak with respect to how UPSC is been giving marks in last couple of years. Sir थोड़ा सा marking भी थोड़ी सी उन्होंने strict करी है, but still marks are very much achievable in sociology. But instead of only marks, you should be having interest and linkage with the subject, which I feel most of you can easily find out given the nature of sociology as such. Yes.
It's obvious, like this year, it's very hard to achieve 300 plus marks in any subject. बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा. Even I think first ranker could not get that level. And yes, अभिनव का वैसे अगर देखें हम overall मेंस के लेवल पर, तो he is 7th highest scorer. I mean, otherwise it's 14th rank, but 7th highest scorer. He was not good in interviews this time. In the very first 181 I think. 180 180 और उससे इस बार कम हो गया 164 165 तो इंटरव्यू भी काफ़ी इसमें मतलब प्ले करता है, यू नो इट वेरी वेल. और अब उसमें जहाँ भी अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ, अब यही अगर 15 मार्क्स बढ़ गए होते तो रैंक कहीं मतलब टॉप 5 में आ जाती. तो मतलब कहने का ये कि मार्क्स का जो पैटर्न होता है वो वेरी करता है. कभी बीच में आपने देखा होगा कि 300 प्लस में बहुत सारे लोग हैं. Even I remember in 2018 result, one of my student, she got 318 marks in sociology. That was highest that year. 329 भी आ चुका है sociology में. Yes. तो सर संजय के भी 300 प्लस ही थे, आई थिंक. नहीं 300 प्लस नहीं थे, 300 से कम थे, मतलब उसी रेंज के ऑलमोस्ट आसपास, 280 के आसपास. तो उस साल तो बहुत कम थे मार्क्स. उस साल तो बहुत कम marks. तो वो so but put it short, it is not in your hand कि यूपीएससी कितना मार्क्स देगा. इट विल ऑलवेज बी रिलेटिव. तो इट्स नॉट दैट कि सोशियोलॉजी में कम आ रहा है या उसमें कम आ रहा है, तो वो इट्स ऑलवेज रिलेटिव है. इट इज ऑल अप टू यू कि आप अपना बेस्ट उसमें दे पा रहे हो कि नहीं. एंड you have to ensure that you are giving your best each time. So how I used to go about it is ki whatever I have done last time, there should always be a delta based on which I can say कि यार मुझे next time ज़्यादा marks दो, at least to myself. So you cannot think of ना कि you are doing same thing again and again and just expect a better result. So you always have to do that delta. And for you, the bonus point is you can do that delta right from the first day only. Since you are starting your optional now, so and you will be in good hands, I'm sure, in terms of how to go about the subject. So you will be having that scope for doing delta all along your next 3, 4, 5 months whenever you are preparing the optional. I'll definitely get on to कि कैसे आप उसको in depth prepare कर सकते हो optional subject को. But point here is कि you should always crave for कि मैं और कैसे इसमें extra करूँ, in terms of my thinking, in terms of my answer writing, in terms of value addition. So always go for that, but do the basics first. एक चीज जो इसमें जो सोशियोलॉजी में मतलब इस सब्जेक्ट की बात जब हो रही है, तो व्हाई यू शुड टेक सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल. एक चीज आपको दिखेगा कि मतलब इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. आई मीन अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड अर्लियर that may be asked this time as well. And there are some questions that have been repeated as many as 9 times. मतलब मेरे पास ये है, आप लोग भी ले सकते हैं. I mean, ये क्वेश्चन मीन्स टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर, और उसमें आपको दिखेगा जो ईयर वाइज जो दिया हुआ है. क्योंकि जैसे कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ अबाउट एलिनेशन, दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड 9 टाइम्स. एक ही साल में नहीं, 9 साल में अलग अलग पूछा गया है. ओके, तो मतलब ये कि यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर दैट टॉपिक एंड यू आर वेरी मच श्योर कि वो आ सकता है वो क्वेश्चन. चलो वहां से नहीं आएगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन, आई मीन देयर इज अनदर टॉपिक. तो क्लास स्ट्रगल. अब इसमें क्लास स्ट्रगल में एक जैसे कोई भी हो तो उसमें क्रिटिसिज्म जो आता है, देयर आर सम पर्टिकुलर क्रिटिक्स फॉर ऑल थिंकर्स जितने भी हैं. तो वो जो थिंकर्स हैं मतलब कुछ पर्टिकुलर होते हैं और वो हमें कोट करना होता है. अब यूपीएससी ने एक को पकड़ा, जैसे एक स्कूल को पकड़ा, जैसे फंक्शनल स्कूल. एंड द क्वेश्चन इज दैट हाउ फंक्शनलिस्ट्स क्रिटिसाइज मार्क्सिस्ट class struggle theory, and this question is also asked 3 times minimum. मतलब 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 का मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 टाइम्स कम से कम इसमें पूछा जा चुका है. सेम लाइक हाउ, मतलब थिंकर तो अपनी जगह पे है, थिंकर्स की थियरी तो खैर पूछी जा रही है, क्रिटिक में पूछा जा रहा है कि यू नो पर्टिकुलरली लाइक हाउ फंक्शनलिस्ट दे क्रिटिसाइज. अब उसको अगर 3-4 बार यूपीएससी पूछ रही है
एंड यू आर प्रिपेयर्ड, वही क्वेश्चन आ रहा है, तो जस्ट सी कि हाउ सेफ यू आर, यू नो व्हाट यू हैव टू राइट देयर, वहां पे कुछ सोचना ही नहीं है. Yes. So this is something which is there. It's not just about one question. There are so many such questions. They have been repeated. एक बार का मुझे ध्यान है, in 2014 जो क्वेश्चन पेपर आया था, in 2014 60% क्वेश्चंस मैंने काउंट किया था, 60% क्वेश्चंस वो रिपीटेड इन अ वे दैट नो वर्ड बाय वर्ड, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया था, ऐसे रिपीट कर दिया था, एज इट इज उठा लिया था क्वेश्चंस को, और 2 साल से उठाया था. यस, मतलब 2 इयर्स के जो पेपर्स थे उनको उठा करके 60% रिपीट कर दिया था. मतलब ये कि अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, सो यू हैव हाई चांस टू गेट रिपीटेड एज मेनी एज 50% क्वेश्चंस. तो 50% तो आपको सोचना ही नहीं है कि क्या करना है, बाकी बचा 50%. देयर आर सम टॉपिक्स, देखो एज अ टीचर मैं भी थोड़ा सा उसको मतलब इवॉल्व कर रहा हूँ चीज़ों को सिंस बिगिनिंग. 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो उसका भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब यूपीएससी की एक तरीके से मतलब नस ही पकड़ ली है कि क्या यूपीएससी पूछ सकती. कई ऐसे टॉपिक हैं, मतलब किसी टॉपिक का सब टॉपिक बन जाता है, वो हमको बनाना पड़ता है एज अ टीचर, मुझे बनाना पड़ता है, चाहे मतलब कोई भी टीचर हो, और वो चीज़ जो दिया पता चला कि सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड. अब ये खुद ही फील करेंगे, फील किया होगा इन्होंने कि मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो टॉपिक एग्जैक्टली आपके सिलेबस में नहीं है. यस, वो मैं निकाल रहा हूँ एज अ टीचर, वो मैं दे रहा हूँ, और वही क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. तो जस्ट थिंक कि मतलब क्या क्या फील होगा कि मैं ये पढ़ के आ रहा हूँ और वो क्वेश्चन आ रहा है. तो ऑब्वियसली यू हैव हाई चांस टू गेट सेलेक्ट, आई मीन टू गेट गुड मार्क्स एंड फाइनली लाइक टू गेट सेलेक्टेड. एग्जैक्टली, जस्ट टू सप्लीमेंट इट, जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू इस ऑप्शनल को आप कैसे देखते हैं, मैं यूपीएससी इटसेल्फ हैज प्रोवाइडेड यू 2 बाइबल ऑफ फॉर एनी ऑप्शनल. One is the syllabus and another is the previous year question. Good part about optional is you get to find a booklet, जो सर दिखा रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड बुक आता है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है. एज इन की सिलेबस में अगर कार्ल मार्क्स लिखा है तो कार्ल मार्क्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉट ओनली इन लास्ट ईयर बट लेट्स से इन लास्ट 30 ईयर्स पुट टुगेदर. सो यू कैन वेरी इजीली सी कि इस टॉपिक से क्या एक ट्रेंड है और वो इनसाइट्स क्या है. कुछ यू विल डेफिनेटली बी एबल टू ग्रास्प योरसेल्फ. सेकेंडली यू विल बी नीडिंग समवन जो आपका गाइड या मेंटर है, आर दे एबल टू फाइंड दोज इनसाइट्स और नॉट. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आप ऑप्शनल में देखते हैं. एंड सोशियोलॉजी, इंसिडेंटली दिस ट्रेंड इज देयर. देयर आर सर्टन टॉपिक्स जैसे सर ने बताया विच आर देयर इन दी सिलेबस एंड हैव बीन आस्क्ड. गुड पार्ट विद व्हाट आई फेल्ट, जैसा जब सर से मेरा डिस्कशन होता था एंड आवर एक्सपीरियंस हैज बीन, sir not only is able to identify those repeating topic but sir also developed those insights कि क्या नहीं पूछा जा रहा है जो out of syllabus जाके भी पूछ सकते हैं. I'll just like to give few examples on it कि last year या last to last year there was a question on transgender. ठीक है, so बस transgender generally you might find write something based on your GS knowledge, but sir literally discussed कि transgender may be how you can put certain scholars attached to it. This year in paper 2 especially, so again paper 2 is something which many people are afraid of, especially in sociology. I don't know why, but yes, थोड़ा सा fear होता है कि यार वो dynamic है वहाँ पर, मतलब पता है कुछ concrete scholars नहीं मिल पाते हैं, but that is a myth. I'll get to that myth later on. But just to mention कि sir really helps in the paper 2 part with respect to outside syllabus topic or with respect to developing insights. So there is a direct question this time on Little Republic, village as a Little Republic. ठीक है, there is a subject syllabus में India as a village है and various theories attached to it. But how Little Republic is a concept given by Charles Metcalfe has directly been discussed by sir. Similar, likewise, identity politics or ethnocentrism. So ethnocentrism, ये the words which I am mentioning, you can directly go and check Google में last year के पेपर में ये directly questions आए हुए हैं. एथनोसेंट्रिसिज्म पे क्वेश्चन है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन है, देन बुक लिटिल रिपब्लिक पे क्वेश्चन है. तो एथनोसेंट्रिसिज्म इज डायरेक्टली नॉट देयर, बट अगेन पेपर 2 जो फोबिया है उसके सेक्शन सी जो उससे भी बड़ा फोबिया है कि वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा डायनामिक लगता है, उसमें आता है एक एथनिक कन्फ्लिक्ट्स.
नाम का कीवर्ड. तो एथनिक कन्फ्लिक्ट में हाउ यू कैन लिंक एथनिक कन्फ्लिक्ट विद एथनोसेंट्रिसिज्म, दैट इज समथिंग विच सर डिस्कस्ड. सो जैसे सर ने अनटचेबिलिटी पे देयर वाज अ क्वेश्चन, तो उसमें आई स्टिल रिमेंबर एक थिंकर है ऐसे शर्मा, उनकी एक स्टडी है, एंड अपेरेंटली एक ही स्टडी है जो अनटचेबिलिटी पे पढ़ते हैं हम लोग. तो दैट इज व्हाट समथिंग विच ही डिस्कस्ड इन द डिस्कशन. सो द पॉइंट इज he not only developed those insights, but as I mentioned ना, मतलब I personally remember I used to discuss, मैं वन ऑन वन सर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करता था, नॉट ओनली जो आंसर्स होते थे वो डिस्कस करता था ऑफ माई टेस्ट, बट वन टू वन क्वेश्चन डिस्कस करता था, अपने इंसाइट देता था, एंड फिर सर बताते थे कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, कहाँ से मुझे वापस आ जाना चाहिए. तो सो दोज वर दी गुड थिंग अबाउट सोशोलॉजी, दैट यू कैन गेट डेवलप सर्टन insights by yourself, not only yourself, but you are having such type of good mentors who have done that hard work for you, कि कैसे इसमें अलग अलग टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना. So that is why I think sociology is a relatively better optional to take about. uh, I cannot do comparison with history or PubAd or as such any other subject. I can just talk about what are the pros and cons of sociology. So this was a major pro. One con which most of people think about is जो myth है about static versus dynamic. हर पेपर में एक जनरल सा है. पेपर वन is largely theoretical in nature about the fundamental aspects, about the various theories of that particular subject, be it any subject. तो पेपर टू is largely related to the Indian part of that topic. पबैड है तो इंडिया में क्या पबैड होगा, राइट? सो सिमिलरली एंथ्रो में भी ऐसा ही कुछ है. सो सोशोलॉजी में भी सिमिलर है. तो पेपर वन में लोगों को लगता है सिंस इट इज लार्जली थ्योरी बेस्ड तो वो स्टैटिक होगा, और पेपर टू जो है वो इंडिया बेस्ड है तो बहुत डायनामिक सा पूछ लेंगे. एंड यही परसेप्शन बना के लोग ना पेपर टू या तो लेते ही नहीं है, करते ही नहीं है, या सोशोलॉजी में सोचते हैं कि यार फिर तो एक ही पेपर होगा हमारे से तो उसमें से कितना ही कर लेंगे. तो ये जो एक मिथ रहता है ना, आई एक्सप्लिसिटली वांट टू ब्रेक दैट मिथ. सो देयर इज नथिंग लाइक कि पेपर वन इज स्टैटिक और पेपर टू इज डायनामिक. पेपर वन में although you have thinkers which are more static in nature, but there are topics like politics, like social change and role of science and technology which are equally dynamic. इस साल का क्वेश्चन था कोविड-19 की वजह से how society is facing new challenges and how science and technology can help to solve those challenges. So इसमें you have to find the dynamism in it. और dynamism थोड़ा static part से ही आता है जो आप पढ़ते हैं. तो you need to develop that insights कि कैसे वो मुझे करना है. So that is about paper one. पेपर टू में आई mentioned about section C, जिसमें काफ़ी social movements और social movement में जैसे 1970s के बाद how the trend is changing, feminist movements में. तो it is a more of people think कि dynamic part है, but सर ने वो भी, जैसा मुझे जब मैं I interacted with संजय, तो उन्होंने बताया था it was directly being discussed by sir at that point of time. So you might feel it is dynamic per se, but it is not so dynamic as such. There are still thinkers like Ghure, Elvin. Section A is all about thinkers of sociology, Indian society. M.N. Srinivas. So I think आप लोगों ने In fact, there are 6 thinkers in paper 1 and 7 thinkers in paper 2. right. So So more thinkers in paper 2. so it is absolutely a myth. So which generally goes around between the aspirants. I can resonate कि आप लोगों के mind में कैसा रहता होगा. More so I can answer later also, but this is a certain bit of confusions or things which are there in mind which people feel before choosing sociology or even after taking sociology. I have friends जिन्होंने 3 साल मेंस लिखा है, वो still यही सोचते हैं कि यार पेपर 1 ही पढ़ के जाएंगे, पेपर 2 तो जीएस की नॉलेज पे लिख के आ जाएंगे. I still have many friends who do them. तो ऐसा नहीं है. You जैसा सर ने बताया, there is a fine balance. UPSC also does that fine balance between the staticism and the dynamism. So you have to also do the same, and that you do while you have a grasp over the subject, which is throughout your foundation course whichever you are taking, कि आप कैसे उसको पढ़ेंगे and साथ में homework करेंगे with respect to making your own notes. So sir gave me few insights on notes making as well, because it is very 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 important aspect of sociology. मैं इसी को समझाने के लिए लेट मी टेक वन टॉपिक फ्रॉम पेपर 2, दैट इज वर्किंग क्लास.
Proper topic is working class. Its composition or structure and mobility. Okay, this is a very general topic. Yes, you can consider, but मैंने कभी ऐसा कंसीडर नहीं किया कि इट्स अ जनरल टॉपिक. जब मैंने सर्च किया कि इज देयर एनी रिसर्चर हु हैज डन समथिंग टू दिस टॉपिक, आई फाउंड the same topic exactly. I mean, Holmstrom, there is one researcher, Holmstrom. And what actually he has discussed, how working class emerged in India. That is one. And second thing was related to, I mean, these two things, structure and mobility. He presented the structure of working class. I mean, he divided in four parts. Like those workers working in heavy industries, that is one. Second, those who are working in some medium level industries. Third, that is related to small scale industries. And fourth one is related to informal sector. ये चार के स्ट्रक्चर बताए. और मोबिलिटी में कुछ और भी रिसर्चर्स को कोट करके उन्होंने बताया कि मोबिलिटी कैसे होती है. मोबिलिटी मीन्स लाइक समवन हु इज वर्किंग समवेयर in one particular industry and he's getting an opportunity to move in another industry. Is it possible in India? So he has properly elaborated the same. अब इसमें मान लो कि इसमें क्वेश्चन जो पूछा, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि इट्स इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया. तो हॉर्मस्टॉर्म ने सपोज कि ही प्रेजेंटेड हिज स्टडी बिफोर 1991. तो इसका मतलब उसमें ग्लोबलाइजेशन तो नहीं आ रहा है. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन के पार्ट को हम शो करते हैं, दिखाते हैं, तो इसको हम बेस बना लेते हैं. ये बेस है हमारा. इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ. सो व्हाट आई फाउंड दैट ये जो फर्स्ट थ्री हैं, इसमें से मेजर जो है मूव करके चौथे में आ गया, इनफॉर्मल सेक्टर में. यू नो, इन इंडिया मैक्सिमम पीपल आर इन इनफॉर्मल सेक्टर. 96% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया इज इन इनफॉर्मल सेक्टर. 1991 में सारद दवाला रिपोर्टेड दैट 91.5% पीपल दे वर इन इनफॉर्मल सेक्टर दैट टाइम. इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जहां पे लोगों को कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है. सोशल सिक्योरिटी मीन्स हमें लाइक प्रॉपर सैलरी नहीं मिलना, उसमें कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलना, प्रोविडेंट फंड ना होना, ग्रेचुटी ना होना, पेंशन ना होना, ये सब चीजें होती. सो इट वाज नॉट अवेलेबल दैट इट इज नॉट अवेलेबल इन इनफॉर्मल सेक्टर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर. तो इसमें से एक मेजर जो पॉपुलेशन है दैट मूव्ड इन इनफॉर्मल सेक्टर. दैट इज वन चेंज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन. एक और इसमें ऐड हो जाता है. So now after globalization we take 5 different parts of the same. Rather than 4 it is 5. इसमें नया हमने क्या किया, अगर हमारे पास ये बेस नहीं होता तो हम क्या करते. Now what do you think, is it static or dynamic? What is the percentage of dynamism here? अगर आपको ये चीज नहीं पता है, अगर आपको हॉर्मस्टॉर्म नहीं पता है, तो आप क्या लिखोगे, लाइक अ लेमैन. आपका आंसर जो होगा वो लेमैन जैसा होगा. लेमैन मीन्स किसी से पूछ लो, किसी राह चलते से पूछ लो, वो भी बता देगा उसके बारे में थोड़ा बहुत. ये भी इसकी एक स्पेशलिटी है सोशियोलॉजी की. इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यू कैन गेट अराउंड 100 मार्क्स. स्टिल यू कैन गेट अराउंड 100 मार्क्स. आपको पेपर दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे. इवन कार्ल मार्क्स पे भी लिख के आ जाओगे कुछ ना कुछ. इतनी बेसिक बात है तो सभी लोग जानते हैं. वही एक आदमी था जिसने एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात की थी जहां सब इक्वल होंगे, कम्युनिज्म होगा. यस, तो कुछ ना कुछ बना के लिख ही दोगे उसको. So the thing is that it is something, it tells that you how you are connected with the society. कोई भी जो थिंकर होगा यहाँ सोसाइटी के बारे में भी बात करेगा, किसी और चीज की बात ही नहीं करेगा. यस. अब आपकी जो कनेक्टिविटी की बात है ना, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी थियरी को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो. अगर आपने समझ लिया, यू आर कनेक्टेड. क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है जो इस सब्जेक्ट से कनेक्ट ना हो. और अगर कनेक्ट नहीं होगा तो दैट पर्सन विल ईदर बी अ बीस्ट और गॉड. कोई एक ही हो सकता है इसमें से. तो अगर आप, बट यू आर ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब कि आप उस थियरी को समझ नहीं पा रहे हैं, और इसका मतलब कि कोई आपको समझा नहीं पा रहा है. मतलब किताब या यूट्यूब. अभी टीचर के पास जाओगे तो समझा ही देगा वो, बट
The two sources you have, that is book and another one is YouTube. Yes, in some cases YouTube is good, but in maximum cases not. तो जब नहीं समझ पाओगे तब लगेगा नहीं तो बहुत बेकार है, मार्क्स आएंगे कि नहीं। आप लोगों तो खैर आप तो हाथ भी नहीं उठाए थे उस समय जब मार्क्स की बात की गई थी, तो दैट इज नॉट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर यू, इज इट? है ना, मार्क्स तो है ना जरूरी, तो मार्क्स तो आ ही रहे इसमें, इसमें मार्क्स की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू नो हाउ पॉपुलर इज दिस सब्जेक्ट। यू नो अभी भी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पेरेंट्स भेजते हैं उनको, दे क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, दे बिकेम IAS IPS इन 1980s। अभी वो या तो रिटायर हो चुके हैं या फिर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट। तो वो कहते हैं कि हम अपने टाइम में उस समय सोशियोलॉजी लेकर के टॉप किए थे और अच्छे खासे मार्क्स आए थे, यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट। अब ढूंढ लो कोई टीचर मिल जाता है तो टीचर्स तो हैं ही आजकल, तो मतलब कुछ लोग ढूंढते हुए मेरे पास भी आ जाते हैं। यस, कभी कभी उनका भी फोन थोड़ा सा मतलब होता है ना, यहाँ पे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है थोड़ा सा दबाव बनाने के लिए फोन आ गया किसका, तो वो तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, पता चला उनकी वाइफ ने किया कि मैं फलां DGP की वाइफ बोल रही हूँ। तो कभी कभी डर लग जाता है कि मतलब क्या अपराध कर दिया ऐसा कि मतलब, लेकिन फिर लगता है कि बड़ा कुछ अच्छा सा ही किया होगा तभी DGP ने फोन किया है। तो जस्ट इमेजिन कि 1980 में सोशियोलॉजी कितना पॉपुलर रहा होगा उस समय। अब और अपने बच्चों को भेजने, किसी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने कह दिया, एक फादर या एक मदर ही अपने बच्चे को कह रहे हैं कि मतलब यू टेक सोशियोलॉजी। यस, और 90s में तो खैर मैं देख ही रहा हूँ, उसके बाद का तो देख ही रहा हूँ मैं सारा। तो मतलब फॉर द लास्ट 4 decades सो आई कैन से दैट दिस सब्जेक्ट इज सो मच पॉपुलर। तो इसमें कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मतलब कभी 2-4 साल मार्क्स ही ना आए हों, फिर उसके बाद से सडनली दैट मार्क्स स्टार्टेड कमिंग। नो, नेवर, इट नेवर हैपेंड। आई मीन कंटिन्यूअसली। अगर कभी जैसे जैसे संजय के टाइम में मार्क्स का जो लेवल था वो दैट वाज वेरी लो, क्योंकि वो हाईएस्ट स्कोरर था, 280 से कम ही थे उसके, एंड ही वाज हाईएस्ट स्कोरर। बट उस समय सबके ही मार्क्स ऐसे थे, इवन जो हाईएस्ट उस साल की जो टॉपर थी, शी इज वेरी फेमस फॉर सो मेनी रीजंस, टीना डावी। तो उसके भी 300 पूरे मार्क्स नहीं थे, 200 कुछ थे, 200 आई थिंक 99, आई थिंक 299 थे, ज्यादा नहीं थे, मतलब 200 कुछ थे, 299। तो मतलब कुल मिला के 300 से कम ही हुआ। तो मतलब आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि जब आप बात करते हैं कि मतलब डायनामिक सब्जेक्ट और समथिंग, so when you see the topic you feel that this something which is, you know, a topic which is very dynamic in nature, everyday changes are going on, but there are some particular theories, researches. Unless you go through those researches you won't find the the real aspect of the same. You can't get to the reality exactly, and so of course while writing without the research you won't get good marks. So the thing is you need to know, अब होम स्टॉर्म एक ही है और वो कर चुके हैं जो करना है, जो रिसर्च करना है वो कर चुके हैं। तो जो हो चुका है वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है? दैट इज स्टैटिक। आई मीन लाइक यू बॉर्न इन, सपोज यू बॉर्न इन 2002, तब वो डायनेमिक तो नहीं हो सकता है ना कि नो नो आई फील सम लेवल ऑफ इमांसिपेशन लिबर्टी, सो आई फील एलिवेटेड एंड आई एम बॉर्न टुडे। आज मैं सर की क्लास में वो एलिवेशन फील कर रहा हूं मैं। यस, तो आई थिंक दिस इज माई सेकेंड बर्थ एंड द रियल बर्थ। तो यू कैन से आई मीन दिस समथिंग इज डायनेमिक, और कल को कोई और मिला तो उसमें तीसरा बर्थ भी हो जाएगा। बट डज इट हैपन सो? नेवर। मीन्स जो आपसे कहा जाता है ना कि ये डायनेमिक, इनफैक्ट बच्चे नहीं डरते हैं, टीचर ज्यादा डरते हैं इससे। And there are some teachers here itself in this market who they do not teach second paper, but I do not leave even a single topic in paper 2. मैं पूरा पेपर 2 पूरा क्लास में कराता हूँ। और एक और चीज कि क्लास में अब एक और चीज मैंने शुरू किया है, मतलब पहले भी करते थे, अभी बीच में तो फिर गैप आ गया था, एक वायरस आ गया था। तो अगेन व्हेन आई स्टार्टेड
आई स्टार्टेड डूइंग वन प्रैक्टिस कि क्लास में मैं लिखवाऊं आंसर, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उसका आंसर लिखो. यस, इफ इट इज पॉसिबल आई विल चेक इट. तुरंत चेक कर सकता हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आई चेक. और मैंने ये देखा है कि किस तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ स्टूडेंट्स में. देखो होता क्या है ना कि आप लोग सोचते ज्यादा हो, एग्जीक्यूट कम करते हो, क्योंकि आगे भी यही करना है आपको. आईएएस बनने के बाद भी यही करना है. सोचोगे ज्यादा, करोगे कम. तो यू मेक इट अ प्रैक्टिस फ्रॉम हियर ओनली. तो फिर ये लगा नहीं, थोड़ा सा मतलब और थोड़ा दम लगाया जाए, थोड़ा डंडे की जोर पर. डंडा नहीं मारूंगा मतलब, लेकिन जब एक बार दे दिया क्लास में तो खैर लिखना ही पड़ेगा. तो वो धीरे धीरे ना जो एक डर है वो डर अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा. आंसर राइटिंग इज नॉट अ बिग थिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस वॉज नेवर डन in your school, in your college. It is not part of our education system. हमारे सिस्टम में कहीं है ही नहीं. Yes, he was the man. एक बार इन्होंने कोट किया, I don't know whether he remember it or not. It was related to NCERT books. आप लोग पढ़ते हैं NCERT books? पढ़ते हैं? कौन से क्लास की? 11, 12 की. अच्छा, did it happen कि आप लोग सीधा मतलब जब पैदा हुए थे उसके बाद से सीधा कॉलेज में पहुंच गए थे, या ये सब क्रॉस किया होगा, पास किए होगा ना 11, 12? तो उस समय क्या केवल खाया था कि कुछ पढ़े भी थे? केवल टिफिन लेकर स्कूल में जाके खाए थे? पढ़ाई किए होगे ना, और एनसीईआरटी ही पढ़े होगे. तो व्हाई डू यू नीड टू रीड इट अगेन? यस, ही टोल्ड मी वंस कि अगर उस टाइम पे पढ़ लिया होता तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. एक्चुअली दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम. हमारा ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं थे, उसमें एक्चुअली रटे थे एग्जाम पास करने के लिए. यू मक्ड अप द थिंग्स. गए वहां पर एग्जाम में, गए वहां जाके वोमिट किया उसको. यस, और मतलब वोमिट ही बोलने ज्यादा अच्छा है. एक दूसरा भी प्रोसेस होता है, वो नहीं बोलूंगा. सबसे बच गए, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लग रहा है सबको इमेजिन करने में. तो फिर क्या होता है ना कि फिर वो भूल जाता है सारा. निकल गया सारा, खत्म. 2 दिन 4 दिन बाद पूछा जाए, सब सब खत्म है, भूल चुका है. एंड जो राइटिंग प्रैक्टिस है, यू डिड जस्ट वंस, सीधा एग्जाम में जाके लिखे. इन योर स्कूल, इन योर कॉलेज, दिस प्रैक्टिस वाज नॉट डन एनीवेयर, इन एनी मैनर. अब यहाँ पे आए तो पता चला कि यूट्यूबर ने आपको बताया कि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. यस, चिल्ला चिल्ला के पटक पटक के बताया उन्होंने. ऐसे बताते हैं सब, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. वो देखने में ज्यादा मजा आता है सबको. हाँ, वो तो ज्यादा वो देखते हैं. खुद भी कूदते हैं, इस पे भी पटकते हैं सारा. तो 2 मिनट में लगता है कि मतलब सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से फिर होता है कि कैसे करूं. अच्छा, कुछ बनाते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं. कई बार आते हैं हमारे पास, सर स्ट्रैटेजी बता दीजिए. अरे तुम पढ़ना शुरू कर दो ना, अपने आप स्ट्रैटेजी बन जाएगी. व्हाट डू यू मीन स्ट्रैटेजी? तो ये स्ट्रैटेजी वो यूट्यूबर बनवाते हैं, वो तो पटक पटक के चले गए. अब उसके बाद से आते हैं फिर टीचर के पास, सर आप स्ट्रैटेजी आप बनाइए. तो हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ है हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करो. हाँ, हमारे लेवल पे जो है वो यही है कि आपको हम जो जहाँ फील कर रहे हैं कि यहाँ पे ये आपकी प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे हो, वो हम एग्जीक्यूट करवाएंगे आपसे क्लास में. वो लिखवाएंगे हम आपसे, लिखो, उसको चेक करके बताएंगे कहाँ पे प्रॉब्लम है. यस, अब उसके बाद तो आई डोंट थिंक कि प्रॉब्लम कहीं आएगी, वो इम्प्रूवमेंट अपने आप आएगा. यस, एक दिन में नहीं. कई बार ऐसा होता है कि एक दिन, अभी जैसे आज सेमिनार हुआ, कल कुछ आ जाएंगे, सर क्वेश्चन तो आपने बताया ही नहीं लिखने के लिए. लिख लेना ना, इसी पे वर्किंग क्लास बता दिया हूँ, लिख लेना. तो थोड़ा टाइम तो होने दो अभी. राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बट वंस यू बिकम एबल इनफ टू राइट, देन ओनली इट विल स्टार्ट. और एक बार स्टार्ट होगा तो फिर आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब थोड़ा सा रोका जाए इसको, बहुत हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्लास में होंगी. एंड आई होप कि मतलब जितने लोग क्लास में होंगे वो ये कभी फील नहीं करेंगे कि मतलब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, हम कभी लिख नहीं पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ. वो कभी इशू तो आएगा ही नहीं. यस. बिल्कुल सर. तो जस्ट जैसे सर ने बताया ना कि वट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ वाज अबाउट नॉलेज,
कि आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए, वेदर इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू हॉर्नस्टॉर्म या जो मैंने थिंकर्स बताए. द अदर एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आंसर राइटिंग. फॉर एग्जाम्पल आपको कार्ल मार्क्स पता है, बट अगर आपने आंसर शीट में कार्ल मार्क्स नहीं लिखा है तो एग्जामिनर आपसे पूछने नहीं आएगा कि यार तुम्हें कार्ल मार्क्स आता है कि नहीं. इन दी एंड आपने जो आंसर शीट पे लिखा है ना, दैट इज व्हाट गोइंग टू डिसाइड हाउ मच मार्क्स यू विल गेट. सो इन दी एंड व्हाट योर एजेंडा ऑल्सो शुड बी कि मेरे को फाइनली उस पेपर में रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए. तो रिप्रोड्यूस करने आने की जो कला है दैट इज आंसर राइटिंग. एंड unfortunately or fortunately there is no substitute to it. It is hard work, it will be taking time, and you have to do it. There is no substitute for hard answer writing. Content में as sir mentioned या आपको भी पता है there can be n number of videos, n number of material, n number of Google पे articles मिल जाएंगे. तो you might find things कि यार मैं इसको value add कर लेता हूँ. But good part is to do that hard work and do the answer writing. If you are getting such feature within your foundation course or within your class only, so there is nothing better than that. Because मैंने आई लर्न इट हार्ड वे. मतलब मैंने खुद से पढ़ा, फिर डिस्कस किया, फिर बात की सर से, प्रीवियस ईयर किया, फिर सो आई ट्रेवल्ड अ लॉन्ग पार्ट. मतलब हैड इट बीन कि कोई मुझे भी क्लास के टाइम मार्क्स के साथ साथ ये सब चीज़ें बता देता तो it would have been easier for me. So since this is something which sir is starting new also, and it is bang on to the point with respect to what UPSC expects and what is expected out of you also, so you should definitely do it. And just to take on जो sir ने ये point किया है, and I'll just quickly summarize the overall discussion in 5 points कि optional subject के लिए how you should think about या what are the common myths about it. कि your optional subject should not be, it should not be random. मतलब हर बार कुछ भी नया पूछा जा रहा है and there cannot be any predictability about it. There should be certain level of certainty in the subject. Second is there should be decent level of understanding and scoring for both the papers. Like for sociology, many people believe कि paper 2 नहीं हो सकता है, other optionals के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी. So both paper में balance होना चाहिए. Is it visible for everyone? मतलब मैंने लिखा नहीं कभी बोर्ड पे तो मुझे फॉन्ट साइज नहीं नहीं पता. सब सब लगे हुए हैं ना, उसको उनको दिखाई दे रहा हूँ. थर्ड एस्पेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू जो मैंने अभी डिस्कस किया, स्टैटिक एंड डायनामिक. बीट पबैट बीट एनी अदर ऑप्शनल, ये कंफ्यूजन रहती है जनरली. फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग में एंड फिफ्थ, आई विल कम टू आंसर राइटिंग, आई विल जस्ट थिंक कीवर्ड्स. So answer writing में it is often, since most of us are not from sociology background, and even though you are from sociology background, but the expectation of UPSC answer is very much different. Just add one more, that is background. हाँ. And I think he is example of the same. He has no sociology background. I mean, this is something which is happening, all the time. Maximum of my students, because एक हमारा एक ट्रेंड रहा है कि हमारे यहाँ से हाईएस्ट स्कोरर हमेशा होते रहे हैं, और उसमें आज तक मुझे केवल एक कैंडिडेट मिली रादर, तो जिसका सोशियोलॉजी बैकग्राउंड था. और मैंने इससे पहले भी बताया है, मतलब बताता ही रहता हूँ इसके बारे में. उसका बैकग्राउंड भी जो था वो मतलब वर्ल्ड लेवल पे, मतलब हाईएस्ट हो सकता है, कह सकते हैं इसको. मतलब उससे बड़ा क्या हो सकता है, जहाँ पर हम जिन थिंकर्स को यहाँ पे पढ़ते हैं, आज जो थिंकर्स जिंदा हैं, जो जीवित हैं, वो वहाँ पढ़ाते हैं. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वहाँ से उसने मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में. बट स्टिल शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर मार्क्स. इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट शी गॉट ओनली 260 मार्क्स इन द सब्जेक्ट. उसी साल मेरा स्टूडेंट जिसने मैथमेटिक्स में एमएससी किया था, he was the highest scorer. I think he got around 305 marks.
तो फिर उसके कांटेक्ट में वो आई, फिर उसके कांटेक्ट से फिर मेरे कांटेक्ट में आई कि नो आई आल्सो वांट टू नो, आई एम ऑलरेडी आईपीएस, अब अधिक से अधिक मैं आईएएस ही बनना है मुझे, लेकिन आईएएस बनूं ना बनूं, लेकिन एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि मैं भी सोशियोलॉजी में मतलब हाईएस्ट स्कोरर बनूं, ऑल इंडिया हाई स्कोरर। एंड दैट टाइम इट हैपेंड, जो 318 की बात मैं कर रहा था, शी वाज द वन हु गॉट इट। लेकिन अब सोचो कि सेम कैंडिडेट एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू गेट गुड मार्क्स, उसके 260 मार्क्स जब फर्स्ट टाइम दिया है, तो इट इज ओनली सेकेंड टाइम, तो उसमें एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर एकेडमिक्स। एकेडमिक्स कहीं का भी हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो लंदन का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, एकेडमिक्स एकेडमिक्स ही होता है। यूपीएससी की अपनी कुछ डिमांड्स, यूपीएससी वो आपके अंदर स्मार्टनेस ढूंढती है, वहां पे वो रिसर्च ढूंढते हैं कि वो रिसर्च को आप इलाबोरेट करो, उनको हाईलाइट करो उनको। यहाँ पे आपको स्मार्टली चीजों को प्रेजेंट करना होता है विद इन लिमिटेड वर्ड्स, लिमिटेड टाइम, यू हैव टू प्रेजेंट दोज थिंग्स। तो वो चीज जब तक आप नहीं सीखोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड है कि नहीं, बैकग्राउंड होके भी आप नहीं कर सकते हो, और बैकग्राउंड न करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड यस, अभी करंट में तो यही एग्जाम्पल हमने अभी बताया ही आपको कि आईआईटी से किया हुआ है, बट दिस ईयर्स हाईएस्ट स्कोर इन सोशियोलॉजी लाइक सब्जेक्ट, जिसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा लाइफ में, कुछ मतलब ही नहीं, बस कुछ समझा ना, वो योग का अपना एग्जाम्पल जो दे रहा था, और कि कैसे हमारा इंटरेक्शन हुआ, वहां से हमारे अंदर कैसे फीलिंग आ रही थी, वहां से वो फील हो रहा है, वहां से चीजें समझ में आ रही हैं। बट ही हैड नो आइडिया अबाउट थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डर्कहाइम, ये सब क्या है, उनको तो पढ़ना ही पड़ा ना, बट पढ़ा तो उसको कर लिया, अपने अपने लेवल पे लाके खड़ा कर लिया। तो वही चीज है कि मतलब एक क्वेश्चन जो उठता है, दिस इज लाइक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि बैकग्राउंड का क्या रोल है। और अक्सर अभी हमने देखा भी है कि मैक्सिमम ऑफ यू, नॉट 10%, I could see like 2-3% people you have background. Maximum do not have background in the subject. But still, the way people are cracking, they are getting through, you can. अब वो डिपेंड कर रहा है कि कैसे आप, अगर आपको राइट डायरेक्शन मिलता है, राइट गाइडेंस मिलता है, प्रॉपर कंटेंट मिलता है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो, उसको क्या पता है कि आपका बैकग्राउंड है कि नहीं। आप में वो स्मार्टनेस देख रहा है, वो सारी चीजें जो एक अच्छा कैंडिडेट लिख सकता है। इफ यू आर राइटिंग, यू ऑलवेज डिजर्व टू गेट गुड मार्क्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आंसर राइटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूपीएससी एक डिफरेंट एस्पेक्ट में क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज जो सर ने हाईलाइट किया था एजुकेशन सिस्टम में अभी तक क्या रहता है स्कूल में और आई बिलीव कॉलेज में भी, एंड आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू विल हेल्प मी रेक्टिफाइंग इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि क्वेश्चन में जो भी लिखा है ना, एक भी वर्ड अगर मुझे आता है तो मैं उस वर्ड पे कुछ भी लिख दूंगा, जो भी मुझे आता है। तो यही हमारी टेंडेंसी होती है, चाहे क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या फर्क पड़ता है, मार्क्स तो लिखा है ना, मार्क्स लिख दो पूरा, क्या कुछ। एंड आई विल नॉट ब्लेम यू, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे ट्रेंड हो जाते हैं थ्रू आउट आवर स्कूलिंग या इन कॉलेज ऑल्सो। सो दैट इज नॉट वट यूपीएससी एक्सपेक्टिंग। यूपीएससी एक्सपेक्टिंग यू कि वी हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन और आप उस क्वेश्चन का आंसर दो। आप मार्क्स की नॉलेज अपनी वहाँ पर झाड़ने के लिए नहीं आए हो। तो ये जो इसीलिए आंसर राइटिंग बिकम इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई it is not necessary for you to have background in that subject or not. What is important for you is to have that basic level of understanding and then an ability to decipher the question and then answer it accordingly. And that's where you need a guide, mentor and a teacher so that you will remain on the right path. हार्ड वर्क आपको करना है, वो तो मतलब सर नहीं करेंगे। जो भी नोट्स प्रिपरेशन करनी है, बुक्स पढ़नी है, वो ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट एंड दैट यू हैव टू डू फॉर एवरी सब्जेक्ट। बट इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट समवन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिनमें इजीली you don't have to roam around here and there, then why don't you go for that subject? So that's the essentially answer writing part, and it links to the fifth point, which is keyword and thinker. A topic like working class, जिसके बारे में you must have studied in GS, या you will be having certain bit of ideas, but to present it sociologically और उसमें या ऐसा दिखे कि आपने कुछ पढ़ा है, you need to write this word Holmstrom. You need to write about these 4 subcategories. So that's why these keywords and thinkers and terms become very important. One problem which people do, जो मैंने आपको बताया था, जैसे मार्क्स कम हो जाते हैं लोगों के, वो जनरली क्या होता है कि
they tend to overdo it या they don't have an idea about it. मतलब मैं वर्किंग क्लास में दुनिया भर का जो भी मुझे मिलेगा ना मैं सब कुछ लिख दूंगा अपने पेपर में. That is not how it is expected out of you in UPSC. They expect a basic understanding, basic knowledge, certain mandatory terms and scholars attached to it. If you are able to do that and write it beautifully, then you will definitely get marks. So that is what you are expected out of any optional which you are studying. And for sociology, at least I can say these things are manageable. So we have discussed about static and dynamism part. We have discussed about how both papers are balanced. And it's a myth कि एक पेपर ज़्यादा static है, एक पेपर से ज़्यादा score होता है. Both of the papers are eventually equally scoring. For me, जब मेरा 281 score आया था, मेरा पेपर 2 में ज़्यादा marks आया था. If I'm not wrong, कुछ 135, 136 या 1 ऐसा कुछ नंबर मार्क्स थे मेरे. तो मेरे पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स थे. कुछ 3-4 नंबर ही सही, बट ज़्यादा थे. So you get to find a fine balance between the both papers, and it is not random. Which is very important. Previous year questions, syllabus, so you can find out certain bit of predictability and importance and prioritize your reading accordingly. So that is how I see you can make a rational choice of selecting any optional. And sociology for me, and I believe whosoever will take it will definitely be on that stepping foot front for you to help you out in your preparation journey. So yeah, so that was largely to sum it up कि क्या हमने अभी डिस्कस किया. Yeah, that depends upon the level of confidence and preparation which you have done. मतलब there is a basic level of expectations कि आपने subject को पढ़ा हो, notes बनाए हो. तो if you have done that thing, तो and I would say अभी भी it's not late for 23 as such. मतलब all of you who are sitting over here and they can definitely go for 23 because you still have a good amount of 8-9 months before actual prelim is there. For optional generally आप जैसे start करेंगे next 6-7 months you can definitely go for mains. फिर उसके बाद and for mains I'm saying both GS and optional and you can do so provided you are ready to do that hard work कि मुझे optional भी पढ़ना है, GS भी पढ़ना है, उसके जो requirements है वो fulfill करनी है with respect to understanding and notes making. You can do it. Everybody who is sitting over here, in my opinion, can definitely go for 23. So 5-6 hours में you can easily break it down into 2 slots. And how I see is in one slot you can do the current affair part जिसमें newspaper पढ़ो, magazine पढ़ो, and in another slot do the revision and notes making part. So you have to prepare a plan for it ना कि इस month जो भी आपके topics हो रहे हैं either you do it this month या इस month आप previous month के करो और फिर next month इस month के करना. मतलब there has to be a plan to it. ऐसा random नहीं हो सकता है मैं आज कुछ पढ़ रहा हूँ कल कुछ और पढ़ूंगा. तो it will be better to go for what you have studied last month because you know कि मैंने क्या पढ़ा है और इस month रोज तो नई चीज़ हो रही होंगी. तो last month को एक slot में last month जो पढ़ा है topics उनको revision के लिए ले लो, दूसरे slot में current affairs पढ़ो. It will be slightly difficult then, especially given 23. But in my opinion, कि if you are getting an opportunity now, do it straight away. मतलब you will be then having a good amount of 5-6 months in front of you to do the hard work. क्योंकि class होंगे, you have to then study, do the note making part. तो 2-3 months is something which you are adding cost to yourself. If you can decide it straight away, so it's beneficial for you. My suggestion will be it's the right time. Abhi is the more appropriate time. I will not say it right as such, but it is more appropriate to go for this. Abhi for Actually, no, it's not just about completing the topics. It's about writing practice as well. yes. So if you give some extra time, then it would be better for you. Like at least उस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा. जब मेंस देने जाना उसमें ज़्यादा प्रेशर ना हो. That will take a few days. Why 3 months? Sir, actually, after 3 months, there is a batch drifting for anthropology. तो you are waiting for 3 months. तब कोई और एंथ्रो के अभिनव जैन आएंगे और वो आपको बताएंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे. तो नहीं ठीक है यार. देखो
एज फार एज एंथ्रो एंड सोशियो इज कंसर्न उसमें तो काफ़ी हद तक ओवरलैपिंग भी है, तो ऐसा उसी की बहन है वो, उसी की बहन दे है। आर ट्विन सिस्टर्स, और उसमें भी एक स्कॉलर ने ये बोला है, क्रोबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो था ट्विन सिस्टर्स। तो ये एक्चुअल में आप पढ़ोगे, सोशियोलॉजी का टॉपिक होता है सोशियोलॉजी वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी, है ना, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बट इतना नहीं पढ़ा मैंने एंथ्रोपोलॉजी। बट येस, टू आंसर योर क्वेश्चन अगेन, मतलब 3 months इज अ लॉन्ग इनफ टाइम। यू कैन एक्चुअली वांट टू मेक अ डिसीजन, थोड़ा एंथ्रो की बुक्स या उसके सिलेबस को गो थ्रू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और सोशियोलॉजी का तो थोड़ा मैंने बता ही दिया है, आप बाकी खुद भी देख सकते हो। एंड डोंट वेट फॉर 3 months जस्ट बिकॉज कि 3 months के बाद कुछ सेशन होने वाला है ना, तो ऐसे कर सकते हो आप, दोनों बुक्स के दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा देख के यू कैन डिसाइड देन। ये कुछ टॉपिक्स, सो देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर डायरेक्टली लिंक्ड, जैसे आप GS1 के सिलेबस में देखोगे, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन इश्यूज, वुमेन इश्यूज, मुझे पता है पूरा सिलेबस तो मैं पूरा बता दूंगा, बट ये सारे वर्ड्स आर डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सोशियोलॉजी पेपर 2 आल्सो, है ना। सिमिलरली GS2 में देर आर पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, वो अगेन इसमें आता है। सो दैट्स हाउ इट्स द डायरेक्ट लिंकेज। जो इम्प्लिसिट लिंकेज है वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि एथिक्स में भी हेल्प करता है, पेपर 3 में भी हेल्प करेगा, इंटरनल इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पेपर 3। पेपर 3 में आता है, और इकोनॉमी में भी इट्स नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमी, हैविंग अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से फार्मर्स, तो विल एनीवेज हेल्प यू। तो इम्प्लिसिट तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल लिंकेजेस। देन ऐसे में हैविंग अ सोशियोलॉजिकल माइंडसेट helps you build an idea or build a dimension to it. ऐसे तो is about various dimensions and narratives which you will be building. Sociological understanding help you building one such narrative on which you are more confident about writing. So that's how sociology helps. यार दैट इज ईयर टू ईयर, जैसे सर ने बताया था, संजय के टाइम 2014 में भी थोड़ा हुआ था, दैट इज ईयर टू ईयर। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि वो अब हमेशा ही सोशियोलॉजी में कम मार्क्स देंगे या हमेशा ही। सो देयर वाज एन ईयर 2016, वो सब में ही होता है, सारे सब में ही होता है, सारे सब्जेक्ट्स में होता सब है। सब्जेक्ट्स में होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर सोशियोलॉजी एज सच। तो देयर वाज अ टाइम जब एंथ्रो में 300 प्लस मार्क्स दिए थे, और उस टाइम के टॉपर्स भी 3-4 थे विद 300 प्लस, बट आई थिंक इट्स 16 और 17 समथिंग, बट उसके बाद से we have seen very less people who are getting that high marks in Anthro. So that is there for all the optional. ऐसा नहीं है कि it's for particular optional. What's your name, my friend? प्रेम सागर कटारिया। So Prem, I would like to beg to differ on one point कि ऐसा नहीं है कि there is a lot of subjectivity, so everybody will be having a entirely different viewpoint. There are certain topics, for example, let's say thinkers. मार्क्स ने जो थ्योरी दी है, इट इज सेम फॉर ऑल, है ना। इट माइट हैपन, लेट्स से मॉडर्नाइजेशन, या फर्स्ट टॉपिक इज मॉडर्नाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो मॉडर्नाइजेशन, यू माइट थिंक कि मॉडर्निटी के देयर कैन बी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस टू इट। इन दैट केस यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, one correct understanding about what modernity is, and then link it with the emergence of sociology. So in a way what I'm trying to say is ki there someone might have a different definition of it, but conceptually it will remain same ki modernity mein someone might only be talking about ki sirf enlightenment hua ya sirf renaissance hua. You can have a better clarity by having both of them clear in your mind and giving equal weightage to it. So that's how you can have a better clarity of a concept and have a crisp understanding and then present it in a rational manner. तो वो ऐसा नहीं है कि आपकी मॉडर्निटी को वो निगलेक्ट कर देगा उसके, क्योंकि उसके माइंड में कोई और ही मॉडर्निटी है, क्योंकि आप उसको फैक्चुअली करेक्ट और सब्सटेंशिएटेड आर्गुमेंट्स देंगे तो ही विल ऑलवेज फाइंड इट करेक्ट। मेरी क्लास करोगे ना, अपने आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा, भागोगे नहीं क्लास से। मैं 3.5-3 घंटे बिठा के रखता हूँ, कोई चू नहीं करता है, तो प्यास भी लगती है तब भी नहीं कोई जाता है, बैठे रहते हैं। दैट इज माई आंसर। अब ये बताएंगे बाकी। उसमें आई जस्ट ऐड ऑन टू इट, एविडेंटली कि देयर वर टेस्ट डिस्कशन जब सर लेते थे 4-4 घंटे हो जाते थे, फिर भी सर कहते थे कि अभी इस टेस्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो यस, तो इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स,
कौन आपको पढ़ा रहा है और कितनी आप खुद मेहनत कर रहे हो, ठीक है। सो अगर ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होगा तो इंटरेस्ट बना रहेगा। जनरली क्या होता है, वो वन वे ही रहता है, पढ़ाने वाला तो पढ़ा देता है लेकिन पढ़ने वाला खुद से नहीं पढ़ता है, तो इसलिए वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। सो इफ यू डू बोथ द थिंग्स तो यू विल मेंटेन। मेरे बच्चे बोलते हैं ना कि आपको वैसे देख के डर लगता है, मतलब ऐसे बना के रखते हो बिल्कुल फेस, और जब बोलते हो तो एकदम बिल्कुल पता नहीं कैसे एकदम स्माइलिंग फेस और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आप ला देते हो। तो मुझे तो बोलना ही है ना यहाँ पे खड़े हो, मैं चुपचाप तो खड़ा नहीं, अभी अभी बीच में अगर खड़ा होता हूँ ना तो तुमको अजीब लगता होगा कि मतलब बड़ा इतना सीरियस हो गया हूँ मैं, बट आई एम नॉट दैट सीरियस। मतलब योर ओन इनसाइट्स यार, यू कैन जैसे जो क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का मैंने एग्जांपल दिया था, कोविड की वजह से चैलेंजेस आए हैं, हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग यू, तो यू कैन एनी ऑलवेज ड्रॉ योर ओन इनसाइट्स कि कोविड की वजह से एजुकेशन रुक गई है, पीपल आर मूविंग टू ऑनलाइन एजुकेशन, तो उसमें भी एक थिंकर आता है, पीरे बोर्दू आता है ना सर, जो कहते हैं कि वो काफ़ी क्लास रिलेटेड रह जाता है। तो अगेन दैट इज एटलीस्ट thought wise you can bring your own linkages which are very much generally observable. Similarly you can say for health, similarly you can say for domestic violence बढ़ गया है ना, so you can say कि एक पॉजिटिव भी है कि थोड़े फैमिली मिल रही है, बट उस फैमिली की वजह से थोड़ा डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड नो दीज थिंग्स, बट ये कि वहाँ पर यू शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंडसेट एंड दैट क्विक थिंकिंग कि हाँ आई शुड राइट दीज थिंग्स, but you cannot deny the core fact to it, है ना। let me tell you, suppose a very simple topic like functions of family, right? So you have to present it in a different way, like those people, those thinkers who have described the same, what are functions of family, and particularly like nuclear family, because that is something that we witness, we go through. In that case, while giving description given by any particular thinker, you can add some examples there. Yes, these are things which are visible in today's family structure, so that has become your point of view. Definitely you cannot create any particular theory or any particular concept at that particular moment, but what you can do, you can substantiate your answer. Something like a theory which is given by someone or a concept which is given by some thinker, you give your examples from current scenario. That is what is called substantiating the answer. Up to that you have the right and you have liberty. जैसे इसमें एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा मैं, जैसे फैमिली में ही लिव इन का कंसेप्ट आता है, ठीक है, यू विल बी हैविंग सर्टेन, जैसे सर बताएंगे तो लिव इन के कंसेप्ट में देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स अटैच्ड टू इट, बट एग्जांपल में आप ऐड कर सकते हो, जैसे बॉलीवुड की अभी एक लुका छिपी मूवी आई थी, ठीक है ना, सो विच ट्राई टू ब्रेक दैट, हाँ, जो भी स्टिग्मा है, स्टीरियोटाइप है, सो यू कैन राइट इट एज एन एग्जाम्पल टू सब्सटेंशिएट द वेरी पॉइंट विच यू आर राइटिंग, बट वो पॉइंट का अगर आप एक स्कॉलरली बेस या फिर एक थिंकर बेस्ड आर्गुमेंट करते हो तो यू सीम्स वेरी रैशनल देन, एंड देन पुटिंग एन एग्जाम्पल ओवर इट इज नथिंग लाइक दैट। पहले उतना तो करो आप, देन ऑब्वियसली इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक तो सर विल गाइड यू कि उस टॉपिक के लिए और क्या पढ़ना चाहिए। अगर कोई रिसर्च पेपर होगा तो सर ही बताएंगे पढ़ना है, बट वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्लास नोट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख के आप कर सकते हो। He has completed. यू हैव कंप्लीटेड, तो यार तुम फॉर यू द स्ट्रेटजी शुड बी टू डू दी हार्ड वर्क नाउ। व्हाट आई मीन बाय हार्ड वर्क इज कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। सिलेबस में दोनों टॉपिक पे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक स्टार्टिंग विद मॉडर्निटी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी टू कार्ल मार्क्स टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन, फैमिली, किनशिप, ये सब कीवर्ड्स हैं, आपने पढ़ा है तो यू विल बी नोइंग। तो उन हर टॉपिक का दो मटेरियल तो आपके पास है ही, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग लेके अपने नोट्स बनाओ। सो नोट्स मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी अ नोट्स कलेक्टर, रादर यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। हर आदमी के अलग नोट्स होते हैं, ठीक है। नोट्स फॉर अभिनव जे जैन कैन नॉट बी डायरेक्टली रेप्लिकेटेड फॉर लेट्स से प्रेम, है ना। तो नोट्स मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि उसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे लिखोगे जो आपने समझा है। तो डू दैट थिंग फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और फिर आंसर राइटिंग करो साथ में। देखो यार, अभी तो नोट्स बना के जब आंसर राइटिंग करोगे तो रिवीजन हो जाएगा, और फिर जब प्री और मेंस के बीच में प्रैक्टिस करोगे तब रिवीजन हो जाएगा। अभी एटलीस्ट अभी यू शुड फोकस ऑन डेवलपिंग दैट अंडरस्टैंडिंग एंड हैविंग अ क्लैरिटी अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक।
जब आप आंसर राइटिंग करोगे तब रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो खुद भी एक प्लान बना सकते हो कि एक मंथ में एक पेपर का रिवीजन करना है, फिर उसको डिवाइड करके हर रोज मैं एक एक टॉपिक को रिवाइज करूंगा. It's completely flexible. Either you do it through answer writing of a test series or on your own. But before that, the hard work part is very important. Nobody can directly spoon feed you कि यार ये कर दो. फ्री के बाद तो करनी ही करनी है. अभी अगर आपके पास टाइम रहता है ये सब करने के बाद एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट प्री, तो फिर टेस्ट सीरीज कर लो पैरेलली, नो इश्यूज. नहीं उसी दिन उसका शॉर्ट नोट्स सेम डे नहीं होगा. नहीं, आई डिडंट डू दैट वे एंड सर विल गिव फर्दर गाइडेंस टू इट. बट हाउ आई डिड वाज कि मैं जो भी एक टॉपिक पढ़ता था पूरा कंप्लीट कर लेता था. उसके बाद फिर मैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत अगर सप्लीमेंट्री रीडिंग करनी है, जैसे हेरालम्बस पढ़नी होगी आपको, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो पढ़नी होगी, मे बी फॉर सर्टेन टॉपिक्स यू माइट हैव टू रेफर इग्नू मटेरियल. तो वो सब मटेरियल रेफर करने के बाद रिट्जर पढ़ोगे, एंथनी गिडेंस पढ़ोगे, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अलॉन्ग विद योर ओन मटेरियल, उनको सबको पढ़ के टॉपिक के कंप्लीशन के बाद नोट्स बनाता था मैं, नॉट डे वाइज. बिकॉज यू सी देयर आर टू रीजंस. वन, कि उस दिन की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे यू आर नॉट कंप्लीटली अवेयर अबाउट दैट होल टॉपिक एज सच. एंड बी, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इंटरलिंकेज बिटवीन द टॉपिक. तो जो आप जब पूरा टॉपिक कर लोगे या कुछ और टॉपिक्स पढ़ लोगे तब आपको आएगी. तो इसलिए एक बार टॉपिक कंप्लीट होने दो. टॉपिक आई मीन जो पूरा एक यूनिट होता है, यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, यूनिट 2 कंप्लीट हुआ, यूनिट 3 कंप्लीट हुआ, या एक थिंकर कंप्लीट हुआ, उसके बाद करो. मैं बेसिकली यही बताता हूँ कि यू मेक सिनॉप्सिस, बिकॉज आई डू विद द सेम, लाइक आई आल्सो मेक अ सिनॉप्सिस, आई गिव सिनॉप्सिस इन द क्लास. उसको अपने तरीके से, लाइक आई हैव गिवन सम पॉइंट्स, यू ऐड सम मोर पॉइंट्स. क्योंकि देखो अब मुझसे तो आप कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि मैं किसी का सिनॉप्सिस किसी फॉर्म में बना सकता हूँ, सारी चीज़ों किसी के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ मैं. बट you have to, as per your convenience, you have to add some more points in the same, and that will be very convenient for you to revise it as and when you want. It will take least time to revise. मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि at the end जब कभी ऐसा, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, synopsis आपके पास होना चाहिए. इनफैक्ट not only for the option subject but for everything. I mean like for all general studies papers as well. जब आप एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं तो सपोज कि तो पेपर 1 आपने दे दिया और पेपर 2, इन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम होता है. उसमें आधा घंटा मतलब निकलने, एंट्री लेने, और कुछ खाओगे, मतलब कुछ ना कुछ केले वेले तो खाओगे ही ना, मतलब डोंट ईट टू मच. तो उसमें आधा घंटा लग गया. तो यू हैव हार्डली 1.5 hours. इफ यू हैव meticulously designed and made your synopsis within that much of time, you will complete your entire syllabus of that paper. So even at that time also it is quite applicable. और घर पे जब चाहो आप उसको, जिस समय चाहो आप उस समय आप उसको रिवाइज कर लो. और बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा लगता है कि मतलब नहीं, थोड़ा सा हमको डर जैसा लगता है, आप लोग अपने रूम में भी बना सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं अपने रूम में. बार बार नज़र पड़ेगी, सो के उठे अचानक उसी पे सडनली सामने आ गया, कार्ल मार्क्स सामने आ गया, मर्टन सामने आ गया, तो एक बार यू हैव गॉन थ्रू द सेम. यस, तो वो हो जाता है. मतलब वही चीज़, एक तो अपने अंदर पहले वो स्पिरिट क्रिएट करो कि वो चीज़ होनी चाहिए, मतलब हाँ आई हैव टू गेट इट, मुझे बनना है. उसके बाद से चीज़ें अपने आप क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं. मतलब मेरे बताने से नहीं होगा, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. बट सिनॉप्सिस तो सबको बनाना है. दिस समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये की है जिससे कि आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को. Then I mean his question is, after making synopsis, do we need to make another brief note of the same? No, then after you need to write brief note. I mean go for short notes or take the questions, go for answer writing. No, not at all. बिल्कुल बिल्कुल. आप उसके बाद elaborate पढ़ना तो you have कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना पढ़ने के लिए, तो पढ़ोगे ही आप. और मैं इनफैक्ट क्लास में लिखवाता भी नहीं हूँ, मैं ऑप्शन क्लास में लिखवाता नहीं हूँ. प्रॉपर आई गिव यू द प्रॉपर मटेरियल. बहुत मैंने खुद बनाया उन सारी चीज़ों को. इट इज़ नॉट कट एंड पेस्ट. उनको आप पढ़ो अच्छे से. और मैं क्लास में कुछ आपको आंसर्स ज़रूर डेवलप करूँगा, कुछ लिखवाऊँगा कि मतलब कैसे आपको अपना आंसर कैसे डेवलप करना है, वो स्किल कैसे डेवलप करनी है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा. हाँ, अगर कोई नया रिसर्च आ गया तो वो मैं आपको लिखवा दूँगा. यस, अप टू दैट. बट द मेजर फोकस इज ऑन टू clear the concepts, to give you more time clear the concepts,
जैसे समझ सकते हो, और जब तक नहीं समझोगे तब तक उसको मैं समझाऊं, तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है कि लिखवाना कम, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना। I didn't want to be in that double mindset, so I quit my job and then started preparation. यार मैनेजेबल तो सबके लिए होता है वो, मतलब हो तो जाएगा ही, आप पे बर्डन बहुत ज़्यादा आएगा, बट इफ इट्स अप टू यू कि वेदर यू हैव टू, बिकॉज यू हैव टू डू सर्टन बिट ऑफ हार्ड वर्क, उसके बिना नहीं होगा, तो वो हार्ड वर्क आपको स्प्रेड आउट करना पड़ेगा, कुछ टाइम आगे पीछे निकालना पड़ेगा। बट फॉर मी, आई इट वॉज ऑल्सो ए मोटिवेटर फॉर मी, बिकॉज एट एवरी मोमेंट आई यूज टू थॉट कि मैं जो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लिटरल इन लिटरल सेंस, कि मैं क्या कमा रहा होता हैड आई बीन वर्किंग। सो फॉर मी इट वॉज अ मोटिवेटर इन अनदर वे कि यार आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम नाउ, है ना। तो यार ऐसे मैं देखता था। नहीं, सो आई डिडंट गिव 18 में, जैसे 3 मेंस तो मैंने लिखे ही हैं, 17 में, 19 में और 21 में। तो 18 में प्रीलिम के टाइम्स आई गॉट हिल, तो मेरा प्री नहीं हुआ था। एंड 19 में यस, अच्छा आई फॉरगॉट टू मेंशन, तो जो 17 का अटेम्प्ट था उसमें आई मिस द फाइनलिस्ट बाय 5 मार्क्स, और आई वेंट टू द इंटरव्यू स्टेज इन दैट वेरी अटेम्प्ट। और जो 19 वाला अटेम्प्ट था उसमें आई ऑल्सो वेंट अप टू इंटरव्यू एंड आई मिस द फाइनलिस्ट बाय 1 मार्क। तो नहीं, उसमें रिजर्व में आ गया था। फिर मेरा रिजर्व में आया था, बट दैट वाज द वेरी मतलब लो पॉइंट, बिकॉज आई कुड एक्चुअली नॉट थिंक ऑफ कि यार मतलब सिलेक्शन इतना करने के बाद भी कैसे नहीं हुआ। तो इसीलिए फिर मैंने 20 का अटेम्प्ट नहीं दिया था, आई स्किप 20 अटेम्प्ट, फिर मैंने 21 अटेम्प्ट दिया था। सो आई डिडंट गिव 20 अटेम्प्ट इन बिटवीन, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। Sir, in addition to that, here, Yeah, it's personally up to you, it's entirely up to you if you can manage your time, because you cannot blame it otherwise कि यार मैं तो जॉब कर रहा था इसलिए नहीं पढ़ पाया, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो जॉब कंटिन्यू करे रखो, बिकॉज मेनी पीपल डू इट। इफ यू आर नॉट तो फिर छोड़ दो, मतलब इट्स इंटायरली अप टू यू, बट आई डिड हैव शेयर्ड इट विद यू, नाउ यू हैव टू डिसाइड। sir, in addition to that, sir, after you quit your job, it must be it must have taken 5 or 6 years to get to this point. So, missing your cutoffs by 5 marks or 1 marks, or not attempting a exam. So I'm guessing like 4 attempts, as you said. So this must be very frustrating and must be very exhausting. So I would like your tip on how do you keep your cool in that, and how did you maintain your perseverance over there? सो यार देखो, व्हेन यू डोंट गेट सिलेक्टेड ना, जब मेरा 1 मार्क से मिस हुआ था तो प्रैक्टिकली मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया था, सो आई वाज लिटरली शैटर्ड। तो देयर इज नो हार्म इन फील डिसअपॉइंटेड अगर आपका नहीं हुआ है तो। इनफैक्ट अगर आपने लिटरली सही मेहनत की होगी तो यू विल फील डिसअपॉइंटेड, एंड यू शुड फील डिसअपॉइंटेड अगर तब भी नहीं हो रहा है। बट द पॉइंट हियर इज हाउ यू बाउंस बैक। So for bouncing back, you definitely need someone in your personal life and some mentors who can guide you to come back. There might be some shortfalls जो आपने नहीं किए, but more importantly, what helped me kept motivated for me, तो वो incident था जिसकी वजह से I decided to go for civils. तो it always came back to me कि why I have to do it. So I used to continue. But to convert it, this thought and this feeling into practical aspect, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार अगर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, तो मैं वो क्या एक डेल्टा इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ जिसके बेसिस पे आई कैन एटलीस्ट से टू माई सेल्फ कि आई डिजर्व अ बेटर रैंक। तो आई ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट व्हाट डेल्टा आई कैन डू। तो उसमें इट कैन बी कि कुछ टॉपिक्स में मोर डिस्कशन करना है, मोर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मोर आंसर राइटिंग करनी है, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट यू शुड हैव दैट हंगर कि मुझे वो कुछ एक डेल्टा करना है on the basis of which I can expect a better rank, and I think that can be a very practical motivator for you. So in addition to that, I have one more point. I would like to add that there are certain factors which are controllables and there are certain factors which are not controllables. So if something goes wrong in the other part, like something which goes like which are not controllable, so how do you manage that part? Like that is not in your control. People say that it's not, since it's not in your control, you must calm yourself and then keep going that. But it has been a 6 years journey for you. So has there been any incident about that? इंसिडेंट था ही, जैसे मैंने बताया, मतलब वो डेफिनेटली होता है,
you feel low, you feel disappointed and demotivated. But again, मतलब as I mentioned, आप somewhere you have to make peace with yourself. थोड़ा thought लगता है कि नहीं हुआ है, life is not fair to me. तो but again मतलब I used to say to myself कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिसके बेसिस में मैं बोलूं कि can I beat that controllable part through my hard work. तो मैं वो क्या हार्ड वर्क करूं जिससे मेरा कंट्रोलेबल बढ़ जाए और अनकंट्रोलेबल कम हो जाए. मेरे हाथ में कंट्रोलेबल है, मैं कंट्रोलेबल बढ़ाता था. अनकंट्रोलेबल तो है नहीं ना मेरे हाथ में. मैं कंट्रोलेबल पे वर्क करता था. थोड़ा थोड़ा अभी से ही करते रहो यार, कोई हार्म नहीं है. थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो करनी है, वो करते रहो. चाहे हफ्ते में 1-2 दिन कर लिया, बट थोड़ा थोड़ा करते रहो, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो. सर मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि जब भी हम लोग जीएस वगैरह पढ़ते हैं सर, जब तक वो चीज़ें हमको समझ में आती है सर, तब तक हम लोग सर बहुत मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ ठीक है अब कर लेंगे सर. जहाँ चीज़ें सर समझ में आना बंद हुई सर, वहाँ हो जाते हैं सर परेशान. तो सर कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें सर इस जर्नी में सर? क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम लोग जीएस वगैरह पढ़ते हैं सर, अगर चीज़ें हमको समझ में आ रही है सर, सब चीज़ें हमको समझ में आती है तो नो प्रॉब्लम. बट अगर सर हम लोग कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा है तो सर दिक्कत होने लगती है, हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं सर. सर कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें सर? यार अपनी टीचर से बात करो कि सर मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप समझा दो. मतलब आई थिंक और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो यार, और क्या बोलूँगा मैं. आई थिंक पहले तो वही चीज़ है, फिर कि सर जो मुझे समझ नहीं आ रहा है बता दो आप. नहीं सर, उसके बाद खुद से थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो कि क्या समझ नहीं आ रहा है. नहीं सर, वो 2-4 दिनों बाद लगता है कि नहीं हमसे ना हो पाएगा सर, ऐसा फील होने लगती है सर. तो यार वो तो फिर वो टॉपिक की गलती नहीं है ना, वो आपके मोटिवेशन की गलती है. तो अगर नहीं हो पाएगा तो यार उसके लिए एक प्लान माइंड में रखो. पहली बात तो यार वो फीलिंग तो आएगी थोड़े टाइम में, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट लार्जर मोटिवेशन कि तुम ये क्यों कर रहे हो. उससे थोड़ा कंसिस्टेंट रखो अपने आप को. थोड़ा ब्रेक लेना है फॉर फ्यू आवर्स और अ डे, तो ब्रेक भी ले लो. हो जाता है ग्रिलिंग काफ़ी प्रिपरेशन के टाइम, तो ब्रेक लेने में कोई हार्म नहीं है. तो बट इम्पॉर्टेंस इज डिसिप्लिन. मतलब हाउ आई सी इट कि जैसे मैंने अपनी टेबल पे कोड भी लिखा हुआ था कि बियर द पेन ऑफ डिसिप्लिन टुडे और बियर द पेन ऑफ रिग्रेट इन फ्यूचर, है ना. तो आज अगर आप डिसिप्लिन हो तो कल आपको रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा आज के दिन को सोच के. तो डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि सुबह 3 बजे उठ रहे हैं या ठंडे पानी से नहा रहे हैं फिर पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं. डिसिप्लिन का मतलब है कि आपके माइंड में एक क्लैरिटी है कि मुझे इस महीने क्या करना है, अगले महीने क्या करना है. और फिर मैं उस जैसे आई आंसर दैट क्वेश्चन कि मैं इस हफ्ते महीने क्या पढ़ूंगा, अगले हफ्ते क्या पढ़ूंगा, उस टाइप से ब्रेकअप करके एक ब्रॉडर लेवल ऑफ क्लैरिटी रखो. जो डेली टास्क है वो कंप्लीट करो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा हूँ, जो भी मैगजीन वगैरह है वो पढ़ रहा हूँ कि नहीं. तो अगर आप डेली के टारगेट्स को अचीव करोगे तो खुद से मोटिवेशन आएगा यार कि हाँ मैंने आज किया है, मैं कल भी करूँगा. थैंक यू सर. एक तो मैं तो एक थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो बहुत डाइवर्स जो सोर्सेज है ना, उनको थोड़ा सा एक्सपोजर थोड़ा कम करो. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द थिंग्स कि आप पढ़ते हो आपको क्लास में, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको 2 दिन समझ में आएगा, 4 दिन समझ में आएगा और 5वें दिन से समझ में आना बंद हो गया. ऐसे कैसे हो सकता है? ये दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. हाँ, ये तब हो सकता है कि जब आपने 2 दिन क्लास की, 2 दिन आपने बंक मारा, यस, 5वें दिन फिर आप आ गए, तब वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप डीलिंग हो चुके हो उस चीज से. हाँ, तो वो जो डाइवर्स सोर्सेज है ना, उनको थोड़ा सा लिमिट करो. कई लोग ऐसे हैं जो आपको डीमोटिवेट करने में बहुत मतलब वो उनको मजा आता है और वो करते रहेंगे आपको. समटाइम्स नो यू गेट सम स्टूडेंट्स, सम सीनियर्स, वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे. तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने यहाँ पे क्या सीखा और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आई. क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ लिया वहां पे बाहर जो आपने यहाँ पढ़ा नहीं था, आपको लगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं फिर तो अब मेरा क्या होगा. तो व्हाई डू लिसन टू दोज पीपल? आर दे गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर? क्या वो बन चुके हैं? ना वो बने हैं, ना वो आपको बना सकते हैं, तो उनको सुनते क्यों आप लोग? स्टॉप लिसनिंग टू दोज पीपल, कहीं के भी हो, चाहे वो सीनियर के फॉर्म में हो, आपके अगल बगल में रहते हो या किसी चैनल के थ्रू आते हो, उनको आप सुनना बंद कर दो. कंसंट्रेट करो, देन कम टू डिसिप्लिन. फिर आप डिसिप्लिन पे आओ, अपना एक रेगुलर वो मेंटेन करो कि हमको ये काम ऐसे करना है, अपने आप वो मोटिवेशन आ जाएगा. दूसरी तरफ दिमाग जाएगा ही नहीं. जब दिमाग में इतना वो भरा रहेगा कि यार हमको आज का कंप्लीट करना है, हमको आंसर राइटिंग भी करना है, तो ये नेगेटिव कहां से आएगा फिर? व्हेन यू गिव टाइम फॉर द नेगेटिव थिंग्स इट विल डेफिनेटली कम. और नेगेटिव चीज ज्यादा आती है दिमाग में. यस, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि टाइम मत दो उसके लिए. और इतना सब कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, इतना सब कुछ बताया जा रहा है, उसको बस उतना ही कर लो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं, उतना ही कर लो
नहीं आएंगे, फिर वो टाइम ही नहीं मिलेगा आपको करने का। Sir, as you said that we should limit ourselves to few resources, but nowadays for a single subject or a topic, the resources are so vast and scattered. So at a point of time, we may fall for many resources. So my question is, how to limit ourselves to few resources? I mean, who I asked this question, to me or to him? One can answer. मतलब it depends, पहली बात तो ये डिपेंड कर रहा है कि यू नो आर यू डूइंग इट योरसेल्फ, you have some mentorship, are you related to some mentor, or do you want to do it yourself? अब पहले तो इस पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने खुद कर रहे हो, अपने खुद करना है, सेल्फ करना है, या फिर किसी मेंटोर मतलब किसी है, तो वहीं लिमिट हो गया। फिर इट इज लिमिटेड देयर ओनली, वो मौका ही नहीं देगा, टाइम ही नहीं देगा तुम कुछ और करने के लिए। तुम एक काम करना ना, तुम 10 दिन क्लास के बाद 15 डेज, आफ्टर 15 डेज क्लासेस यू कम टू मी एंड आई गिव यू लिस्ट ऑफ सम बुक्स, यू विल नॉट लाइक टू टेक दैट वन। फर्स्ट डे तो चाहोगे कि पूरा लिस्ट यहाँ पे 50 बुक्स यहाँ पे लिख दूं मैं, एंड यू लव टू टेक इट, बट आफ्टर 15 or 20 days when you come and I give you list of just 10 books, you will not like to take that one. Why? आपने खुद ही कहोगे नहीं सर इतने जो कराया जा रहा है वही मैं कर लूं, इससे अधिक क्या होना है। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, देखो मुझे नहीं पता है कि यूपीएससी इज नॉट माई हाउस, मेरा घर नहीं है। यस, एंड सम टॉप लेवल पीपल दे आर नॉट माई रिलेटिव्स, लाइक इन लॉज नहीं है मेरे, तो देयर इज नथिंग डिटर्मिनिस्टिक कि यही चीज होगा, यही करोगे तो करना होगा। बट देखो होता क्या है कि वी आर एम्पेरिकल ऑलवेज, हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है, एंड इफ इट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन स्मूथली, इफ इट इज गोइंग, तब हम कहते हैं कि चलो यही वे है, ये ज्यादा अच्छा वे है, इसको अपना लेके चलते रहो। दैट्स व्हाई यू नो आई गिव यू सम राइट थिंग्स इन अ राइट डायरेक्शन टू कीप योरसेल्फ ऑन अ राइट ट्रैक, then after you yourself will limit using diverse sources, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सर मेरा क्वेश्चन सर से है। सर जो हमारा सिलेबस है यूपीएससी का, उसमें जो पॉइंट्स में मेंशन है जीएस 1 to 4, तो उस पर्टिकुलर मतलब पर सब्जेक्ट में जो भी हमारा जीएस 1 2 3 4 है, उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल डायरेक्शन में कैसे कवर करके नोट्स बना सकते हैं जो कि मेंस आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो हम लोग के लिए। आई होप कि आपने भी किया होगा सर। यार इसके लिए मुझे एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर इट इन 1 or 2 लाइन, एंड मोस्ट लाइकली मैं नेक्स्ट फ्यू डेज में इसके रिगार्डिंग चैनल पे यूट्यूब पे वीडियो डाल के थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि दिस इट इटसेल्फ विल टेक ऑलमोस्ट 1 hour टू एक्सप्लेन कि कैसे करना है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हो ना कि कैसे उसको, ये तो पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हो पाएगा। लाइक सपोज कि कुछ भी हिस्ट्री पढ़ लिया, साइंस टेक आपने पढ़ा ही नहीं, तो उसको अगर ऐड करना होगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो फर्स्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज लाइक टू कंप्लीट एवरीथिंग, एंड देन ओनली यू डेवलप दैट लेवल ऑफ टेम्पो टू क्रिएट दैट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। वो सब चीजें बाद में आती हैं, उसमें टाइम लगता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। It is not like you started doing your preparation and within. सर जो मेरा क्वेश्चन है, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन में कैसे कवर। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़े ही नहीं, तो पॉलिटी कैसे लाओगे उसमें। आपने साइंस टेक नहीं पढ़ा, साइंस टेक कैसे उसमें ऐड करोगे। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट यू नीड टू कवर एवरीथिंग। वंस इट इज कवर्ड तो अपने आप खुलना शुरू हो जाता है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है कि हाँ अब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। Good evening, sir. Sir, what should be the structure for answer writing and how to refine the language for effective answer? What should be the sources to refine the language? Actually, Yeah, whatever sources- I am writing, it is not compulsory that the one who is checking it, it's comfortable for that. नहीं, अगेन देखो उसमें टू सर्टेन एक्सटेंट जो प्रेम को मैंने बताया था वहां से ही आएगा कि आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं इट शुड बी लॉजिकल, सब्सटेंशिएटेड विद आर्ग्यूमेंट्स, तो फिर नोबडी कैन डिनाई इट। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इट। सेकंड, सिंस इट्स वेरी कस्टमाइज्ड ऑन पर्सनल थिंग, तो जब तक आप अपने आंसर्स किसी मेंटर को नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको वो इनपुट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा कुछ जेनरिक कोई मैं ऐसे जादू की छड़ी नहीं बता सकता हूँ कि जिसकी वजह से मैं बोल दूं कि यार ये आर्टिकल पढ़ लो, उससे तुम्हारा आंसर राइटिंग ठीक हो जाएगा। So what should be the structure? Structure for answer Structure. writing. स्ट्रक्चर इज ऑब्वियसली एक जो
Introduction, Key- body. कीवर्ड से देखो अगेन इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक कि स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए. टू कीप इट शॉर्ट, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड कंक्लूजन. सबने बोला होगा ये. अब उसमें जो जो बॉडी होती है ना, उसके ऊपर लोग काम नहीं करते हैं. ठीक है. Obviously, मतलब I can take n number of questions and n number of examples to substantiate how an introduction 1 is different from introduction 2 and introduction 3, and then body में भी क्या होना चाहिए. But the major point in structure of an answer is कि जो question में पूछा गया है ना, keywords, आप उनको ढंग से address कर पाओ. Generally लोग, as I mentioned earlier also, वो marks देख के पूरा marks लिखाते हैं rather than understanding कि उसमें पूछा क्या है, whether it is about class struggle or alienation or something else. है ना. तो कीवर्ड डिसाइड करेगा ना कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम इट. अपने आप फ्रेम होना शुरू हो जाएगा. तो वो वाले माइंडसेट से बाहर निकलो जो अभी तक करते आ रहे हो आंसर राइटिंग में, तो फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में फ्लो आ जाएगा. एंड इट इज हार्श रियलिटी बट इट इज ट्रू. 99% ऑफ स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन द सेम फैशन ऑफ एनी आंसर विच दे आर राइटिंग, वेदर इट इज फॉर जीएस और ऑप्शनल. सब वैसे ही लिख रहे हैं. जो पूछा है वो नहीं लिख रहे, जो आता है वो लिख रहे. जो लैंग्वेज की बात है, लैंग्वेज पे वर्क लास्ट में करना है. आई मीन फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर कंटेंट, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू प्रेजेंट द आंसर. और लैंग्वेज की जरूरत होती है कैसे उसको हम थोड़ा सा कन्फाइन करें. जो वर्ड लिमिट है कैसे में उस कैसे एक वर्ड इटसेल्फ कैन गिव यू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस इटसेल्फ. तो फिर उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, बट दैट इज एट द एंड. डे वन में नहीं हो सकता है. तो इन सब का अलग अलग स्टेज है जिसमें चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं एंड फाइनली यू गो टू दैट लेवल. सो शुड आई एंड इन फैक्ट वी What is my hobby? यार आई मेनी हॉबीज. मतलब क्रिकेट जो दुनिया में सब इंडिया में सबकी होती है वो तो है ही. तो मतलब आई प्ले म्यूजिक, तो थोड़ा वो हॉबी है. मैं वीडियो गेमिंग भी करता हूँ, वो भी मेरी हॉबी है. गाना भी गाते हो. गाना नहीं गाता नहीं. वो तो सर जस्ट इनफॉर्मली सर की डॉटर है. शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर. Don't worry, you may find her very soon on some national channel television. तो बाकी आप लोग मतलब टेलीग्राम और यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो. और ऑल्दो मतलब मैंने इतना कुछ पर्सनल लाइफ को विजिबल किया नहीं हुआ है सोशल मीडिया पे, बट आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम वेरी रिसेंटली. तो जो भी अगर इंस्टाग्राम पे तो abhinav.jjan.is इज माई हैंडल. वहाँ से देख के वहाँ से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो. अगर इफ़ आई फाइंड समथिंग रेलेवेंट तो आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट देयर. सो ठीक है यार. सो दैट इज इट. थैंक यू. so should we begin the session? मैं नेगेटिव चीजों से थोड़ा परहेज करता हूँ. So begin means, so we begin to move from here to some other places. So should we? So okay. Best wishes to all of you for your journey. From both of us, that all of you get selected. सब लोग select हो जाओ and खूब अच्छे से celebrate करें हम लोग उसको. Okay. Okay guys, thank you.